There's always drama around. There you have it. The emperor himself, not the king, but the emperor. Virat Kohli once again scoring another century and coming back into form against guess who? Pakistan. But a very happy India camp there. Well done to them. A dominating performance by the Indian cricket team. Pakistan looking meek, lost, and a lot of questions that have to be answered. We'll talk about that. I'm Fakhri Alam. You are watching the DP World Dressing Room, and this is 10 Sports, our continued coverage of the ICC Champions Trophy. In the news out of the Dubai International Cricket Stadium, the Ring of Fire, it's that India has dominated Pakistan one more time, and as we know, in recent history. And it was, of course, Virat Kohli that has come to the party to make that famous. That's going to be remembered, that innings. Very, very special. We'll talk all about it. But before we do, let's take a look at the match summary. This is how it all went down. Pakistan, once again, winning the toss. This time, deciding to bat first. Imamul Haq, who's come in for Fakhar Zaman, scoring only 10 of 26 deliveries, and then needlessly throwing his wicket away on that silly run out. After that, Babar Azam looked good for a moment, but then it was Hardik Pandya who put the brakes on him, and that was really well done. Saud Shakil anchored, well done, well played, kind of. We'll talk about that as well, that's 62. And Mohammad Rizwan, 46, but then again trying to accelerate, could not survive Akshar Patel's delivery. Salman Agha today tried his luck against Kuldeep Yadav, giving that big top edge and going out. And then Tahir Tayyib, well, didn't make any impression. Khushdil Shah put up a bit of a fight towards the end, couldn't last long. And of course, Shaheen Afridi came in there and took a very nice review right off the very first ball. And that's how it went down for Pakistan. It's 241 for all out, and that's good. But look at those bowling figures. Those bowling figures are just absolutely fantastic for India, especially what Hardik Pandya did in those overs that he delivered today. They were absolutely very fantastic because he kind of put the brakes on the team. Now, in response to that, it was a brilliant effort. Rohit Sharma up top had done some damage, but it was once again, Shubman Gill coming into that innings with 46 at a good strike rate. And then Virat Kohli stamping his authority everywhere. With me in the... I was going to say something else. Yeah, be careful. In the DP World Dressing Room, I've got four fantastic individuals. Two very happy, two a little pensive. We are going to have a very good discussion straight out. First up, I've got a very happy off-spinner, very good down the lower order batsman, played for India, represented his country, does a lot of broadcasts, has worked with the BCCI. We've got Nikhil Chopra. Nikhil, congratulations and welcome to the dressing room. Thank you so much. Next up, I've got the legend himself, the toe-crushing legend, Waqar Yunus. Waqar, welcome. Thank you, sir. Hello. I know, a little muted, but that's okay. It happens. Yeah. It happens just I'm glad that you're not very emotional. Normally, in these sort of situations, you become very emotional and very angry. Uski wajah मैं नहीं बताता हूँ उसकी वजह कुछ इस तरीके से. Next up, I've got, ladies and gentlemen, cricket royalty himself with us, the greatest all-rounder of all times, the man who has given us so many memories that we still live in the nostalgia of those victories, because recently it doesn't look good for us. I've got the Sultan of Swing, Wasim Akram. Wasim, वेलकम. शुक्रिया शुक्रिया. अब तो आदत सी, वो आतिफ असलम का गाना है ना, अब तो आदत सी हो गई है मुझको ऐसे जीने में. मुझे ऐसा हो. वो नजूमी के पास जाता है, अपना हाथ दिखाता है कि जी मेरा फ्यूचर की होएगा. नजूमी पहले हाथ देखता है, कहता है तू गरीब है, गरीब हो जाएगा. कहता अच्छा. नजूमी फिर कहता है तू और गरीब हो जाएगा. कहता फिर तू बहुत गरीब हो जाएगा. तो कहता फिर तू यूज्ड टू हो जाएगा. तो ही साडा वाले ਅਸੀਂ यूज्ड टू हो गए. And finally, ladies and gentlemen, another very happy camper here in the DP World Dressing Room. I've got a fantastic batting sensation from India, Ajay Jadeja. Congratulations, Ajay Paji. Well done to Team India. You must be very proud of that performance. No, of course, proud of my team, but not a happy man today, because you want to see a good game, you want to see a competitive game. Yes. Yes, we all want our own countries to win or our own teams to win,
but probably disappointed today with the whole game as on its own. और जब इतनी हाइप होती है और उसके बाद इस तरह की फुस किस्म की गेम आ जाए तो बंदा फिर ऐसे ही फील करता है। नहीं, बट हाइप में उनकी गलती नहीं है, हाइप आप और हम करते हैं शायद। हमने तो नहीं किया, नहीं, हम तो मतलब बड़ी वही कह रहा हूँ ना, जहाँ से भी हाइप है, क्योंकि कोई मैच ही नहीं नजर आया। सिवाय टॉस के आप क्या जीते हैं? आपने ना कोई दिल भी जीते हैं। कई बार क्या होता है कि आप मैच हार जाते हैं या आप बिल्कुल मारे जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा एक मोमेंट सा दिन में आता है जिसमें आप दिल तो जीत सकते हैं, तो वो भी कहीं देखने को नहीं मिला। तो आई एम हैप्पी फॉर इंडिया विनिंग, बट नॉट अ हैप्पी मैन टुडे। those are very meaningful words because ये कहना कि ठीक है आप टॉस के अलावा क्या जीते और आज आप दिल भी नहीं जीत सके। Wasim, it has been, and I was hearing you were in the comms, you and Waqar both were in the comms, and I remember जो last आपके मेरी हम तीनों की actually जो memory है वो न्यूयॉर्क की है, in that T20 game as well, right? And here we are again. It's the same conversation again and again. Wasim, it is. It's drastic steps. Enough is enough. वो पायजामा सर्जरी हो रही थी। नहीं, सर्जरी का I don't know. हम पिछले couple of years से white ball में हारी जा रहे हैं इन्हीं प्लेयर्स से। अब वक्त आ गया है टू टेक अ बोल्ड स्टेप, एंड बोल्ड स्टेप क्या है? यंग लड़के जो विकी बता रहा था, फेयरलेस क्रिकेटर्स वाइट बॉल क्रिकेट में लेके आए। चाहे आपको 5-6 चेंज करने पड़े, बड़े करें चेंज। आप अगले 6 महीने हारें, उनको सपोर्ट करें, और 2026 के वर्ल्ड कप T20 की टीम आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। बस बहुत हो गया, देख लिया, चांसेस दे दिए, स्टार्स बना दिए। पाकिस्तान के 5 मैचों में 24 विकेटें ली हैं बॉलर्स ने सारे मिला के, और 60 की एवरेज से ली हैं, 60 रन्स पर विकेट इन लास्ट 5 गेम्स। अ शॉकिंग स्टैट ये है कि 14 टीमें इंक्लूडिंग ओमान एंड यूएसए हैव प्लेड ODI क्रिकेट दिस ईयर। पाकिस्तान बॉलिंग एवरेज इज द सेकंड वर्स्ट इन दोस 14 टीम्स। इसमें यूएसए भी है, ओमान भी है। That's ridiculous. अब होना क्या चाहिए? बड़ा चेयरमैन वापस जाएं, चेयरमैन साहब पहले बुलाए सिलेक्शन कमेटी को, उसके साथ बुलाए कप्तान को, कोच को, और जो हमारे 5 लेजेंड्स रखे हैं उनसे फ़ायदा उठवाए और उनसे पूछे ये सिलेक्शन क्या किया तुम लोगों ने। खुशदिल शाह और सलमान आगा अब ये बैठे हैं बैट्समैन इंडिया से, वो आज लग रहा था कि वो आउट कर सकते हैं किसी को, विराट कोहली टाइप को। आई एम सॉरी, जो फैक्ट है वो बताना पड़ेगा। हाँ, जो सच है हम चीखे मार रहे हैं कि भाई ये स्क्वाड ठीक नहीं था। चेयरमैन ने कहा भी है कि एक दिन पहले 1 दिन रह गया है, स्क्वाड चेंज करना है तो कर लो। इन्होंने मीटिंग की है 1 घंटे की, उसी स्क्वाड के साथ बाहर आ गए हैं। ये कप्तान का भी कसूरवार है इसमें, बिकॉज कप्तान इज द लीडर ऑफ द शिप, ही इज द स्किपर, एंड अगर उसको नहीं पता मुझे कौन कौन से मैच विनर चाहिए, अपनी ही कंडीशंस में हम क्या उसे कहते हैं, वो पढ़ नहीं सक रहे कंडीशंस क्या हैं। सो इट्स एम्बैरेसिंग नाउ सीइंग पाकिस्तानी। एक तो थे भी 8%, 9% हो गए ग्राउंड में, 10% कर लो। उनको जाते देख के, उनके फेसेस देख के, पहले जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था 15 से 18 ओवर के बाद वो सारे निकल चुके थे। ये मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं देखा, एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट। पाकिस्तान, वी एज अ नेशन, अ वेरी पैशनेट नेशन। ठीक है, हमारी एक्सट्रीम है अर्श पे या फर्श पे, बट दिस इज व्हाट इट इज, दिस व्हाट वी आर। ये तो ना अर्श है ना फर्श है, ये तो बेसमेंट में चला गया मामला सारे का सारा। No, I understand that. It's frustrating. It is very frustrating. Waqar, was it a good decision by Rizwan to bat first after winning the toss? Yeah, I think so. Yeah. I think it was a good toss to win and bat first, and we like batting first. With runs on the board, but not enough runs on the board. Simple as that. और जब आपने runs ना किए हों तो फिर इस तरह की सूरत हाल हो जाती है। आप and then you over trying things. Yeah. जो सुबह दोपहर में भी बात कर रहे थे ना कि एक डिसिप्लिन चाहिए बॉलिंग में, एक डिसिप्लिन चाहिए आपकी फील्डिंग। उनके भी तो बॉलर वही बॉलिंग कर रहे थे। They were disciplined. That's all they were doing. And I don't think we had enough discipline in our bowling. Batting में भी we had it's hard to explain what happened. इन्होंने देखा, उन्होंने देखा ही, क्योंकि आपकी आज बाबर अच्छा दिख रहा था। I thought okay, now we're talking. We just got this बाबर की जो ड्राइविंग वगैरह और सारा अच्छा लग रहा था। Once he got out, Rizwan went in, first ball bang for 4, and I thought okay, there is a plan. I can see that there's a plan, there's an intent कि we're gonna put up a good show, we're gonna put up a good total.
And then I don't know what happened after that. I honestly don't know what happened after that. So I don't know. I don't think anybody knows that. Apparently the team doesn't know either, by the way. I think Yes, फकर भाई, Nikhil. आज जिस तरीके से जो गेम चला ना, भारतीय गेंदबाजों ने वो मोमेंटम पाकिस्तान टीम को आने ही नहीं दिया। 2 विकेटें गिरी, उसके बाद जब मोहम्मद शमी इंजर्ड होके वापस जा रहे थे, वो एक मोमेंट था शायद गेम में जहां पे पूरा भारतीय टीम का खेमा भी वो घबराया हुआ था कि ये पूरे ओवर करेंगे नहीं करेंगे। हार्दिक आया, हार्दिक ने बाबर आजम को आउट किया। वो 5 चौके खाने के बाद वो एक मोमेंट था। एंड टू मी द बिगेस्ट मोमेंट इन द गेम जहां पाकिस्तान पिछड़ती चली गई, जो हम पहले बात कर रहे थे, वो भारतीय 3 स्पिनर 30 ओवर में 20 ओवर के गेम में 120 गेंदों का गेम हुआ था, उसमें से पाकिस्तान की टीम 78 डॉट बॉलें खेल गई थी। तो आप उस प्रेशर से वहां से निकल ही नहीं पाए, क्योंकि आप भारतीय स्पिनर्स का जो कंट्रोल नजर आ रहा था, कुलदीप डाल रहा था, अक्षर डाल रहा था, जड्डू डाल रहा था। अगर आप स्टेप आउट करके भी अगर स्ट्राइक नहीं रोटेट करते तो आप इन्हीं बॉलर्स को और चांसेस दे रहे हैं कि एक ही बैट्समैन 3-3, 4-4 डॉट बॉलें अगर एक ओवर में खेल रहा है तो वो विकेट टेकिंग डिलीवरी प्रोड्यूस कर सकता है। सो एज अ स्पिनर, इफ यू नो कि इस बैट्समैन ने मुझे निकलना नहीं है, इसने ना मुझे स्वीप मारनी है, तो आपका माइंडसेट क्या होगा? भाई मेरी वेरिएशंस और मेंटली और पता चल जाती है कि ये बैट्समैन इस समय जो है ना बैकफुट पे है, प्रेशर में है, तो मैं उसी फ्लाइट में चेंजेस कर लूंगा, क्रीज की चौड़ाई इस्तेमाल करूंगा, कुछ अलग करने चला जाऊंगा। फिर मैं ये नहीं देख रहा कि कोई बैट्समैन मेरे पीछे आ रहा है, मैं बचने जा रहा हूँ। मेरा माइंडसेट है, मैं जितनी देर 3 ओवर 4 ओवर का स्पेल डाल रहा हूँ कि मैंने यार इसको आउट करना है। सो वहां पे भी आई वाज अ लिटिल सरप्राइज कि 120 गेंदों के में 78 डॉट बॉलें हो गई। मैं आपको एक ये जस्ट वांट टू जस्ट गिव यू दिस नंबर व्हिच आई हाइलाइटेड। 104 रन की पार्टनरशिप हुई रिजवान और साउथ शकील की। आई नो साउथ शकील, हम सब बैठे कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा खेला है, या रिजवान बहुत वहाँ पे ज़रूरत थी ऐसी, लेकिन वनडे क्रिकेट जिस तरफ जा रही है ना, दैट्स नॉट द वे टू प्ले। 104 रन बनाए 144 गेंदों में, और उसमें से जो सबसे हैरान कुन बात ये थी कि उन दोनों ने 24 ओवर बैटिंग की। 24 ओवर उन दोनों के बीच में खेले गए, और 24 ओवरों में 19 ओवर ऐसे थे जिसमें 5 या 5 से कम रन हुए हैं, बल्कि 5 2-3 दफा हुआ, 4 3 2 2 3, इट वाज अ टेलीफोन नंबर। सो पहले इंडिया ने पहले 10 ओवरों में 11 बाउंड्री मारी। 10 ओवरों में पहले 10 ओवर, पहले पाकिस्तान ने पहले 30 ओवरों में 11 बाउंड्री मारी, तो मैच तो यहीं पे खत्म हो गया। आई कैन अंडरस्टैंड 2 विकेटें गिरी, पार्टनरशिप लगी, विकेट कोई हवा तो नहीं थी ना यार। नो डीमंस इन द पिच। आप अपनी इनिंग्स में ही देख लें, Yeah. जो सबसे मुश्किल काम कब होता है, जब विकेटें गिर रही हैं, और सबसे आसान बल्लेबाजी कब है, जब विकेट नहीं गिर रही। आपकी जो पूरी इनिंग्स को देखें, और जो सबसे बड़ी पार्टनरशिप जो विकी ने अभी दिखाई है, वो आपकी सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट की पार्टनरशिप है। तो आपका जो बेस्ट डे है या बेस्ट मोमेंट है उस मैच में, उसमें आप सबसे हल्का खेले हैं। वो हार की जिम्मेदार वो पार्टनरशिप है। नहीं, जिम्मेदार तो देखिए, जिम्मेदार नहीं है, पूरी but I टीम think- होनी चाहिए। नहीं वो तो है, अकेले तो फिर किसी पे डालना नहीं, डालना मतलब नहीं है इसका, किसी इंडिविजुअल पे नहीं डालना, क्योंकि ये पार्टनरशिप ने आपको गेम में बहुत पीछे छोड़ दिया। नहीं, आउट हो जाए। और उसके बाद आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं दूसरों को कि जाके हम लोगों ने 3.5 के स्ट्राइक रेट से खेला है, हाँ। अब आप जाके खेलिए 10 के स्ट्राइक रेट से। मेरा मतलब है that's where we lack। ये जो तूने छुई है ना, ये जो 5 6 7 पे खेलते ना, वो ये इसको फील कर सकते हैं, क्योंकि वनडे क्रिकेट होती है, 300 बॉल है। शुरू वालों को पूरी 300 खेलनी है, अपनी तरह से खेलनी है, लेकिन अगर शुरू वाले जो कि बेहतर प्लेयर होते हैं, इसीलिए वो आगे खेलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब आप खेल रहे हैं और आप 24 ओवर, कितने एग्जैक्ट नंबर जो बोला, 24 ओवर आप खेलने के बाद अगर आप 70 की 72 की स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं, तो आपसे जो हल्का खिलाड़ी अंदर से आ रहा है ड्रेसिंग रूम से, वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो 7 से खेलेगा या 6 से खेलेगा? नॉट पॉसिबल। सो आई एम सेइंग दैट इज वेयर इट इज कि यार आपका अच्छा दिन और बुरा दिन होगा, ये आपकी सबसे अच्छी पार्टनरशिप है और वो सबसे हल्की पार्टनरशिप। ये वसीम, आई वांट टू आस्क यू दिस, वो कहते हैं कि जी इफ यू प्ले फॉर योर national side, you know, you've got to be the best of the best. Yeah. Is this the best of the best that we have? Apparently, according to selectors, जो भी हमारे selectors हैं, कसूर सबका है। ये selectors को मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो टीम पिक किया उन्होंने, जो स्क्वाड पिक किया है, पता नहीं क्या सोच रहे थे। Because ये 2 बॉलर जो खुशदिल हैं और जो अपना वो है सलमान आगा, ये दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों को फ्लैट विकेटों पे तंग करेंगे। Acha, let's take a look at the fall of wickets of Pakistan. The fall of wickets brought to you by Tamasha app. Let's take a look at it. These are the fall.
आई थिंक ये बड़ा क्रूशल मोमेंट था, क्योंकि यहाँ तक ठीक चल रहा था काम, और ये हुआ असली तमाशा यहाँ से शुरू, क्योंकि वो आउट हो गए थे एक ओवर पहले, फिर वो आउट हुए, और ये सारा मेहनत करके फिर आप थ्रो करके चले गए, और फिर उसके बाद आपने उम्मीद करी है इन खिलाड़ियों से जो अभी अंदर आए हैं वो भी रन बनाते चले जाएं। तो आई थिंक फिर वो गेम में आए ही नहीं, क्योंकि इस वक्त बल्लेबाज के पास चॉइस नहीं है कि गेम की पेस वो चलाएं, एंड होने वाला है, फिर आपको चलानी होती। ये आपने सही कहा था कि ये रिव्यू बड़ा अच्छा लिया, मुझे समझ नहीं आई ये, सॉरी माफ जितनी तेजी से लिया था रिव्यू, मैं उस पे ज्यादा हैरान था। मैं समझा कि पूरा बल्ला लगा है। यही समझ, मैंने कहा कोई बहुत बड़ी एज मारी है जो हमें नजर ही नहीं आई। नहीं, So, ऊपर से पता है कि कुलदीप का हमें नहीं रीड हो रहा, आगे जाओ, हमें नहीं रीड होगा, उसी को विकेटें दिए जा रहे हैं, उसी को निकल के मारी जा रहे हैं। That was the matchup that Nikhil Chopra had mentioned. Abrar bowled a really nice ball. This was a great catch. एक्चुअली इंडिया की सिर्फ 4 विकेट गिरी हैं। एक एक को गिनाऊं, अगर खाली ये 4 विकेट कोई देखेगा ना, पहली आपने बैट्समैन को बीट किया है, उसके डंडे पे मारा, दूसरी वो ऐसे करके ना खेला है आपको, वो यार स्पिन भी हो रही थी, स्विंग भी हो रही थी, तीसरी ब्रिलियंट कैच पकड़ा है, यू नो, और चौथी एक ही बाउंसर मारा है सारे दिन में। मैं कहा ये सिर्फ 4 बॉल दिखाए ना आप, तो यही 4 बॉलें, ये बस यही हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। आई एम सॉरी, आई एम नॉट रबिंग इट इन, बट You're right. You got to rub it in. no, I mean, look, it is disappointing देखो, because प्लान India बी Pakistan एज अ cricket, फास्ट बॉलर, अगर कुछ नहीं हो रहा तो बाउंसर करके देख लो, चौके थे उनजी पैरे ने ना, तो ऐसे करके देख लो, फील्डर है, शायद ऐसे लग जाए, खड़ा हो जाए, कुछ हो जाए। Actually, वसीम it takes me, वो हम हमेशा सुनते हैं कि जी पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक, पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक। अरे वो तो यहाँ इस टेबल पे बैठा हुआ है, आप जो सुनते हैं किधर है वो बॉलिंग अटैक? ये रहा कि जी पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी स्ट्रांग है, बॉलिंग बड़ी स्ट्रांग है भाई, ये कौन सी बॉलिंग कुछ स्ट्रांग नहीं है मुझे कुछ पाकिस्तान समझ ही का। नहीं आ रहा। क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। Really, I mean, it is disappointing. As a fan, you know, we're Pakistani fans, we're disappointed. I mean, this is just nonsensical now. वहाँ पे ग्राउंड में इवन कमेंटेटर लाइक शाज और सनी भाई कह रहे थे यार पाकिस्तान जीत जाए ना आज, तो इट बी गुड फॉर द टूर्नामेंट, बिकॉज टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है, यू नो, थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा पाकिस्तान के लोगों का, बट आई थिंक पाकिस्तान हैड अ प्लान बी। Pakistan had a plan B. I don't think they have the skills that we are used to associating with Pakistan. And one more thing, skill is one thing that you are blessed sometime or you acquire. Fitness is something that you got to acquire. I think that they are definitely disappointed. And I think the most important is that dil. It's that dil that I was talking. कि यार मतलब ये ऐसा थोड़ी है कि these greats that we're sitting with, and I'm privileged to be around them, they've also lost games. You find me a game that they've lost, and he and him, or whenever they were playing, they would have not finished their quota of bowlers. They would lose a game, but they would put in all that they have before losing the game and not go just according to plan कि मैंने उस time आना है. That is what I meant by dil jeetna, because there is no guarantee for any team to win. And please, I understand the fans may be disappointed. I met a young girl that I was trying to explain. I said, what you are going through, we went through that also in our childhood or in the times that we played. There were moments that India couldn't win. But so I'm saying, but what you are disappointed as a, you know, as a fan of this game is that you don't see that from Pakistan. मैं सुने, एक तो आपने वो बड़ी अच्छी बात की, लेकिन आपने ना बात की स्किल नहीं है सर इनके बराबर की, मतलब आई एम बीइंग वेरी ब्लंट, आई मीन नॉट बिकॉज़ दे आर सिटिंग हियर. नो आपने एक बड़ी जबरदस्त बात की अजय. आपने अभी एक बात बोली कि हमारा बचपन ऐसे ट्रॉमा में गुजरता था कि इंडिया हारती रहती थी पाकिस्तान की टीम से, ये इस टाइप का माहौल होता था, और अब हम जो है उसका रिवर्सल देख रहे हैं. लेकिन इसमें आपको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, क्योंकि आपने जो गैप था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में उस वक्त का, उस गैप को क्लोज किया, और अब आप उस गैप को इस तरफ लेके जा रहे हैं, मीनिंग दैट यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर, एंड वी आर रिग्रेसिंग. Our cricket is regressing. It has nothing to do with if we were to, Wasim, just take India Pakistan, okay, the gap is getting bigger. But if we were to take Pakistan, the gap is getting bigger with every team. Like I don't know if we're going to be able to compete against Bangladesh, because Bangladesh sometimes plays really extraordinary cricket. Yeah. प्री-गेम शो में एक वो स्टैट दिखाया था स्टार्टिंग में, विन परसेंटेज पाकिस्तान का, आई थिंक इन द 80s and 90s every decade प्रोग्रेशन, वो किस तरीके से बढ़ रहा था. बट इन द लास्ट 2 decades you see how India has been climbing. And to me, I think I give credit how the domestic structure, BCCI has been able to change things around. और ये भी स्ट्रक्चर, और एक स्ट्रक्चर के साथ ये भी मुझे पता लगा है कि आपके जो आपकी जोनल क्रिकेट है या फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, उसमें सेलेक्टर का, उसमें वो जाते हैं, फर्स्ट क्लास का
फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होना जरूरी है। I've been told today. नहीं, आपके वहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर नहीं है जो सिलेक्ट नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ गेम्स खेलने होने चाहिए कोई भी हो भाई। सकता है सिलेक्टर, अगर आपका मूड हो तो गेम होने चाहिए। पहले एक मैं तो रेडी बताता हूँ आपको। Are you trying to tell me a national selector in Pakistan has not even played first class cricket? एक सिलेक्टर थे, उनका Not to नाम say मैं कि भूल they- गया हूँ, वो कि ब्यूरोक्रेट हैं, वो सिलेक्शन कमेटी में थे अभी 6 महीने पहले। अभी एक अंपायर आ गए, वो फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। फिर जो स्टैट का बंदा है वो भी है, वो चलो स्टैट का बंदा क्यों चाहिए आपको? सबसे पहले स्टैट तो कंप्यूटर तो लिखे होते हैं ना यार। कोई मैं कह रहा हूं, a stat person can be a advisor to the selection committee कि जी ये रे मैं आपको stats देता हूँ इस बंदे के Yeah. ऊपर, but to have him on the selection committee is anyway. It's just, all I can say is I think if you were to summarize this whole, yes, go ahead. No, stats की आपने बात की. If you are selecting players on stats, then you are not selecting. Yeah. Then you are only rejecting. Yeah. Because what you are selecting is जो stat दिखा रहा है. Yes. सिलेक्टर का मतलब ही वो है कि वो किसी चीज में देखता है. ये 2 एग्जांपल्स बैठे हैं जिन्होंने भी इनको पिक किया था. उस टाइम इनके स्टैट शायद सबसे बढ़िया नहीं होंगे दुनिया में, लेकिन ये फिनिश किए हैं दुनिया. So you got to see what you want or what you are going to work with. If you see a player and you see a skill and you feel that ये 6 महीने बाद बेहतर होगा, उसमें कुछ तो नजर आएगा. वही तो सिलेक्शन है. स्टैट कहाँ से बताएंगे भाई? या स्टैट ये नहीं बताते पोजीशन क्या थी, सिचुएशन क्या थी, ऑपोजिशन क्या थी, पिच कैसी थी, ग्राउंड कैसा था, माहौल क्या था. वो एक रफ गाइड है. जी हाँ, I completely agree. Well, another disappointing performance for Team Pakistan. Another great dominating performance by India against Pakistan. Clearly, the gap between the two getting bigger and bigger. Pakistan regressing, India progressing, and Virat Kohli, like always, finding form against Pakistan. And all I can say is that a better team, clearly a better team won today, a mentally stronger team won today, a physically fitter team won today, and a better skilled team won today. With that, we're going to take a break here at the DP World Dressing Room. When we come back, there's more. Stay with us. Welcome back to the DP World Dressing Room. I'm Fakran. You're watching 10 Sports, our continued coverage of the ICC Champions Trophy. A lot of disappointed Pakistani fans and a very happy sea of blue across the border and around the world. Congratulations to the Indian fans for another great and dominating victory. We are talking about the game. With me in the dressing room, I've got 4 fantastic gentlemen. I've got Nikhil Chopra, Waqar Yunus, Wasim Akram, and the great Ajay Jadeja. And we were talking about this game. Let's talk about the batting that was on display today from India. Outstanding stuff. Let's start with Gill. Another great innings, Jadeja Paji, by Gill. He's carried on his form. I mean, both of them together, because Gill, idealizes Virat Kohli, and I think they're both that sort of a player that if you give them an inch, they don't throw it away. And he got a brilliant ball to get out, because strike rate is not their forte, both of them, but they're very consistent. Today he took on Shahid. At one stage he got after them. He was a little lucky. Well, that shot is something that you admire. When you see somebody play that straight drive. And he drove beautifully. But you had a chance. I still remind you had a chance. I think the score was around 60 something. वो catch जो छूटा उस time. But ये और विराट कोहली जबरदस्त. ये फोटो कॉपी है, उसका दीवाना है. इन दोनों की खासियत ये है कि अगर गेम आपके हाथ में है ना, ये खुद नहीं आउट होके जाते. ये बुक कर जाते. अच्छा, ये interestingly, Waqar, you saw that Shaheen was pitching it up full, searching for that swing, that incoming ball, and getting smashed all over the place. मैंने आज दोपहर को मैच से पहले भी यही बात की थी ना कि वेयर इज द डिसिप्लिन. वो आप शामी से ही सीख लो. उसने क्या किया आपको डिसिप्लिन से बॉलिंग की है, खिंची हुई लेंथ पे बॉल की. आपको हाफ में खेलना पड़ा, आपको उसको नज करते थे ज्यादा सिंगल के लिए. आप इनकी जितनी भी अभी ड्राइव्स दिखाई है ना हमने, आप दोबारा देख लीजिए बेशक, आप सारी ड्राइविंग लेंथ है. वही तो कह रहा हूं. ऑन दी अप आई मीन यू ओवर ट्राइंग थिंग. जब आप ओवर ट्राई करोगे तो ये इस क्लास के बैटर्स हैं कि ये आपको नहीं बक्षेंगे. ये एक दफा नहीं हुआ, ये पहली दफा नहीं हुआ. नहीं, ये बहुत दफा हुआ. He's searching, डंडों के सर्च में वो इतनी ओवर पिच करके, और आपके पास स्कोर भी नहीं है, आपके पास बैंक में कुछ भी नहीं है, और आप ये ओवर ट्राई करी जा रहे हैं, तो फिर ऐसा तो फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं ना. फास्ट बॉलर्स जो पाकिस्तान बड़ा मशहूर है कि फास्ट बॉलर बैक्टीरियाज आती हैं, ये हैं ब्ला है, फलां है, ढींगना है. मैं आपको बताता हूँ अभी स्टैट्स. शाहीन शाह अफरीदी जो हमारा मेन बॉलर है, एक सेकंड बजाय उनके आप 5 के बताएंगे ना.
5 मैचेस के। मैं जरा आज को आपको बीच में कर दूं so that you can reaffirm that case with it. Today Shaheen Shah Afridi has bowled Wasim 8 overs for 74 runs. And how can you win a game from there? Okay, one game can understand. All right, but so look at Shaheen this. Afridi पिछले 5 मैच, Yeah. 47 ओवर 341 रन, 8 विकेटें, 43 की एवरेज, 43 की एवरेज। ये मैं बैटिंग नहीं बॉलिंग की बात कर रहा हूँ। देन यू कम टू हारिस राउस, पिछले 3 मैच 2 में भाई इंजर थे, उन्होंने कहा 5 कौन खेलेगा, 2 इंजरी हो जाओ। 3 मैच 52 की एवरेज, 3 विकेटें, 52 की। फिर आ जाए आपके तीसरे फास्ट बॉलर पर नसीम शाह, 56 की एवरेज, 5 विकेटें, 4.46 ओवरों में, ये 5 वनडे की है। तो ये आपके 3 प्रीमियर बॉलर 50 एंड ओवर विकेट ले रहे हैं, 50 एंड ओवर। So you're not going to win any game, unfortunately. That's just really terrible. That stat is really actually horrifying. It's 60% of your bowling. Yeah. I mean, 60% of your bowling averaging 50. But I think जिस तरीके से शुभमन गिल ने आज गेम खेला, भी रोहित को आउट किया, क्लीन बोल्ड, जो एक शहीन अफरीदी की इतने सालों से जब वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं कि एक प्लान रहता ना कि that was a matchup that you'd already told us about. वो उनका वो है ना कि स्विंगिंग यॉर्कर डालेंगे या गेंद ऊपर डालेंगे। आउट होने के बाद भी शुभमन गिल स्टेप आउट करके सीधा मारने को देख रहा था। है शाहीन अफरीदी पाजी, वसीम भाई, आपसे पूछना चाहूंगा, has he lost pace after that injury? पेस आज थी उसकी, आज 140 142 आई है उसकी। आज पेस पे थे वो, पर स्टेप आउट करके वो वही गेम प्लान पे बॉलिंग कर रहे हैं जो पहले से वो विकेट करते जा रहे थे, एंड ही गॉट लिटिल प्रेडिक्टेबल, एंड दैट्स व्हाई शुभमन गिल वाज अ स्टेप अहेड। yes, मैं आपको absolutely, ऑनेस्टली बताऊं, शाहीन को रन्स कम हुए हैं, और पढ़ने चाहिए, कम हुए ऑनेस्टली। जिस तरह की बॉलिंग थी ना, इसको रन्स कम हुए हैं। आप शुरू के उठा के देख लीजिए, उन्होंने ना वो थोड़े केयरफुल थे कि यार ये जो यॉर्कर मारता है इसको थोड़ा सा ध्यान से खेल लो पहले 2 ओवर। हालांकि वो भी बॉलियां थी, अगर वो थोड़ा तैयार होते ना तो वो भी आपको तैयार का रिस्क नहीं था लेना चाह रहे। अच्छा चलो 1-2 ओवर देख लो, वरना वो भी हाफ बॉलियां थी। तो आई मीन आप ऐसे नहीं जीतोगे, आपको एक पैक बनना पड़ता है एज अ बॉलिंग यूनिट। वसीम भाई, मैंने अगर कुछ किया है ना तो वी वर्क टुगेदर, देन सक्सेस केम। इट्स नॉट कि जी टीम की सक्सेस आप इंडिविजुअली आप कुछ कर रहे हो मैं कुछ कर रहा हूँ, ये कभी भी नहीं होगा। और एक और रूल बना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, सिलेक्टर को, जिस बंदे की थ्रो नहीं है, जितना मर्जी अच्छा प्लेयर है, वाइट बॉल में नहीं आ सकता, डन। एक्चुअली नसीम शाह थ्रो करता, लगता है जुलूस ही जीत मार रहे हैं। पहला हमें सिखाया गया है, हमें बताया गया है जब हम आए नए आए थे। कमाल पता है क्या हुआ है? हाँ। हमारे डायरेक्टर साहब ने 2 दफा एक शॉट आपका कट मिस किया। अब इधर ही रखिएगा, एक बार फिर जरा नहीं, दोबारा नहीं कर रहे मैं यार, ड्रामा हो रहा है। बात भी बुला दी आप यार तुम लोग। चलो यार मिट्टी पाओ, खत्म करो के चलो, नाराज नहीं। पता नहीं नाराज नहीं, बात क्या थी? अगर थ्रो ही नहीं है तो नहीं खिलाना बॉल के अंदर। इफ दे कांट थ्रो द बॉल। हमें बताया गया था फ्रॉम ग्रेट जावेद मियांदाद, फ्रॉम इमरान खान, फ्रॉम मुदस्सर नजर, कि आपका जॉब है कि थर्ड मैन से आपकी थ्रो गोली की तरह है, ताकि ऑपोजिशन को पता लगे कि वी आर ऑन द बॉल, वी आर ऑन द मनी। अब मैं पहली मैच की बॉल एज अ फास्ट बॉलर ये थ्रो कर रहे हैं इंज करके, और कीपर भी होते ही खड़ा है, उन्हें शेर दे बच्चे ने भी होते नहीं जाना। तो ये चीजें मैटर करती हैं, एटीट्यूड मैटर्स। So we might find this funny, but trust me, it is not funny. This is not funny by any means. What Wasim is saying is extremely बहुत meaningful बात है। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत वरीसम बात है कि हम लोग ये गुफ्तगू कर रहे हैं, और पिछले मेरा ख्याल है वसीम पिछले 4 साल से हम यही 3 साल से कर रहे हैं। वो हम भी ढीठ है, वो महा ढीठ है, वो हमसे महा ढीठ है। बट वो हो क्या रहा है कि वो मुझे लग रहा है रिग्रेशन बढ़ती जा रही है। क्यों वकार? हमारे देखते देखते ये रिग्रेशन और बढ़ती जा रही है। इट इज लाइक इट्स मोर, द टीम इज स्लाइडिंग डाउन मोर एंड मोर एंड मोर। इट्स नॉट गेटिंग एनी बेटर। वसीम भाई ने शुरू में लतीफा नहीं से सुनाया, वी गेटिंग यूज्ड टू ऑफ इट। जब आपके मतलब के 25,000 में क्राउड में आपके सिर्फ 2,000 बैठे होंगे या 1,500 बैठे होंगे, तो वी गेटिंग यूज्ड टू इट ना कि यार कौन जाए ग्राउंड से। सो दिस इज आप क्राउड उसके भी पुल करते हो जब आपके सुपरस्टार परफॉर्म करते हैं। चलो क्राउड को छोड़ देते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि ड्रेसिंग रूम सिंस वी आर इन, यस डू यू थिंक कि आपकी ड्रेसिंग रूम में आजकल, मतलब क्योंकि पहले भी हारे हैं, पहले भी जीते हैं, और सही नहीं है कि कभी नहीं होनी चाहिए लड़ाइयाँ और एक दूसरे को बोलना,
क्या माहौल है आज की आपकी टीम के अंदर ऐसा कि भाई ड्रेसिंग रूम में नहीं, कमरे में, बस में, कहीं ना कहीं एक दूसरे के मुंह पे बोलने लायक रह गए कि यार तू ना, I don't know, मैं कभी पाकिस्तान नहीं, because I think like I said the other day about Afghanistan team, I think the greatest strength that you have or you had in past was that you could tell each other you were rubbish today or you were this or you were that, because people from outside talking will always make them go together and they should. You know, we talking, कुछ सुने, वो इकट्ठे हो जाए एक बात है, but क्या एक दूसरे को इतनी वो रखते हैं? Are they being honest with each other? No. Brutally honest. And are they honest to each other to be able to tell the other guy? यार आज तूने For example, किसे not picking on Shaheen or anything, को यार तू, I won't use the words, कि यार तेरी 140 की पेस है, बाउंसर हार ही गए ना? I'll give you a story from our times. I'll give you one story. I mean, it's not to make up a story. Yeah. We lost to Pakistan. This is in Sharjah. And I won't take names. I won't because, it's past. Fair enough. So we were playing this game. It was like this only. Right. 44th over or 45th over. Game got over. Basit Ali had just walked in. अब 10 रन रह गए या 4 रन रह गए, आया टोपी डाल के आया. So दो बंदे मिड ऑफ वाले गए, बॉलर को हमने बोला वो इसके मार मत्थे थे, मार, मैच तो हार गए. Because realistically you know when you lost the game. Sure. You might keep saying last ball you fight. इसके मत्थे पे मार, टोपी डाल के आया और फास्ट बॉलर है. उसने जाके ना आगे बॉल करी, लेंथ करी और उसने दे सामने छिक्का मारा. वो अगले 2 हफ्ते तक हम लड़ते रहे. कि यार ये क्या है, मतलब हार जीत तो होनी है, बट अगले मैच के लिए भी तो तैयारी करनी पड़ती है भाई. Right. वो टोपी डाल के आ गए तेरे को खेलने, तो इतनी पेस का है. So I'm saying today is there an atmosphere in that Pakistan team where somebody will be able to, like I'm sure Mush, if you got smacked someday or you had, Mush would come and tell you in your room. मुश ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ. Sorry, मुश ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਾਉਂਸਰ ਮਾਰ ਦੇ. ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਉਂਸਰ ਮਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ याद है. Really? मुश तो नहीं. ये भी टोपी पहन के आ गया ना, जयपुर में वनडे था 99 पे, तो ये टोपी पहन के आ गया. और अफरीदी का तेज बहुत तेज होता था, मुझे याद. तो अफरीदी को मैंने कहा, अफरीदी ये तू टोपी पहना है, कह रहा कप्तान बाउंसर करूं. मैं कहा हाँ कर दे. वो इनको बता दिया, इसको पहला गेंद उसने ऐसे किया. मेरा की कर रहे हो यार, लड़ पे है. नहीं, I'm saying these things matter because एक बार वो उस टाइम तो आप हार चुके हो, मैच में कुछ नहीं है, लेकिन अगली बार याद रहता है ना. I know. So I'm saying, is the team in Pakistan today ready to abuse each other in the I don't think so. Not abuse. He can answer it. Vicky has been there. I doubt it. मतलब वो कैसे कह सकते हैं यार तू आज बड़ी नहीं, आपस में बैठने के फास्ट तो अगला इसको क्या कहते तू केड़े छिक्के मार ले, तू भी फारूक सी, तो कॉन्वर्सेशन हो ही नहीं सकती ये वाली. फिर कहां जाएंगे, फिर आप आगे जा ही नहीं सकते. यही तो प्रॉब्लम है ना कि हम फंस गए. Characters are missing. You need characters. So how you can build characters eventually, but these guys are used to it now. That you have to young generation, young guys, fearless. हारते जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, but कम से कम लास्ट बॉल तक लगे कि यार जीत सकते हैं. नहीं, फिर अपने अपने रन बननगे, अपनी अपनी बॉलिंग होगी और आगे चलो. Sorry to say, but नजर आ रहा है कि वही हो रहा है. Self-preservation is the approach. But I think people have read it now. Everybody is getting to know now. We have read it. We've read it for the last 4 years. हमने बहुत सारी बातें नहीं बोली जो हमें पता थी. हमने नहीं बोली because हमने कहा यार मुझे कुछ बातें पता लगी हैं आज सिलेक्शन कैसे हुई है पाकिस्तान टीम की, वो टीवी पे नहीं बताऊंगा. नहीं कह सकते. Just out of respect and regard for okay, let's just give them some space and some room. But unfortunately, what I am worried about is that in this commerce of cricket, there is commerce होती है ना पूरी, इसके commercial aspect है. The commerce of cricket in Pakistan will get disrupted big time. Sponsors will shy away. Broadcasters will not pay the kind of money that they're paying today. And what will that do? It will further erode the game. ना अगर टीवी पे देख किसी का इंटरेस्ट नहीं हो गया कि यार देखनी नहीं है तो वही नहीं है, वो नहीं है, वो further erode हो जाएगी game, and then we will be lost in history in this game as well. It is a very worrisome thing. I'm not angry about it today. I'm just disappointed, but it was the writing on the wall. So I'm not really like disappointed and shocked. This is what it is. I don't think anybody is shocked. Yeah. If you had given an opportunity to these two gentlemen to pick which side, I'm sure they would have picked India to this morning. Yeah.
Well, Maybe. Yes. Maybe. No, I mean, want not what- emotionally, I but- know they want what it is in that DP World container. I know. No, but from heart they want Pakistan to win, but if I don't think there were many people this morning who would have thought. again, you know, as Pakistani. नहीं, मैंने बोला था ना, मैन टू मैन तो कोई मैच नहीं है. हाँ, नहीं, वो रियलिस्टिक है. वो रियलिस्टिक but बात वो तो आज की बात है ना. रियलिस्टिक बात तो यही थी कि उनकी टीम अच्छी है आपसे, लेकिन आप वो क्रिकेट खेले जो उनको हरा सकते थे. आपने अपने स्किल को एग्जीक्यूट किया, जो वर्ड एग्जीक्यूट होता है, जो पीपल हेट इट. आपने जो सोचा था आपने वो किया ही नहीं ना. जो पाकिस्तान फैंस हैं या टीम है या आप लोग, क्योंकि 4 साल से आप बात कर रहे हैं, हम तो जुम्मा देखते हैं, क्या आप लोग इन पाकिस्तान आर हैप्पी विथ हाउ दे सी देयर टीम, नॉट द विक्ट्री, नॉट द परफॉर्मेंस? क्योंकि वो देखो कई बार जैसे स्किल ही बेटर है, वो आपको हरा के जाएंगे, बट पब्लिक क्या इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट से खुश है? देखिए, बोर्ड इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट से खुश है? I think the two champs here would be able to comment on this. But here's the thing. Inside this team, there are still glimpses of potential. Nope. Nope, no more? You don't think so? I don't think so. It's my opinion. Can be wrong, but it's my opinion. How long do you look at potential? I mean, which one? No. Give me an example. I'll give you an example. देखिए ना, recently अभी ODI में हमने एक सीरीज जीती साउथ अफ्रीका से. नहीं, विक्ट्री इंडिविजुअल की बता रहे हो ना आप. इंडिविजुअली तो मुझे नहीं कोई ज्यादा खास ब्रिलियंस नजर आती. वो ये है कि कुछ 2-4 चीजें हमारे फायदे में अगर इकट्ठा हो जाएं तो हम वो कर लेते हैं, बट वो नहीं आती. It's just sad. I think this is a वो. But let's talk about the positives of the game. It was another great innings by Virat Kohli. अच्छा, विराट कोहली. इंडिया टीम की बात. हमारे लिए तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है सर. नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है. यार बोल के बुढ़े हो गए हैं, मरने वाले हो गए हैं. नहीं मरने वाले. I I know what you mean, but Yeah, I'm just saying 4 साल से लगे हुए हैं I ना. understand that it just frustrates you, especially Yeah. that you've seen and given Pakistan चंगा that glory. अच्छा भला यहाँ बैठा था, आज कमेंट्री की यहाँ की आईसीसी की चंगी बेइज्जती करा के वापस आ गए. आप अकेले नहीं थे, ये भी तो थे तो आपके छुप के साथ. कर रहे थे ना, मैं तो वर्ल्ड फीड पे था. छुप के कर रहे थे. छुप के ऐसा कर It was kind of that kind of. हाँ, वैसे आप नजर नहीं आए हमें. बस उर्दू हिंदी में था ना ये, मैं वर्ल्ड अच्छा, फीड मैं पे था. हिंदी में. आप हिंदी उर्दू. ओके. देसी, आप देसी जबान में देसी नहीं, आदमी. आप देसी जबान में क्या कह तो रहे थे? आप तो फिर दिख रहे थे पाकिस्तान में, आप नहीं दिखे छुप के, तो आप हुए. नहीं, he was there, he was visible in Pakistan. नहीं. हमारे यहाँ भाई, इंडिया में तो हिंदी ज्यादा लोग देखते हैं, तो पाकिस्तान में इंग्लिश ज्यादा देखते हैं, उर्दू ज्यादा देखते हैं. पाकिस्तान में हिंदी नहीं रह जाती, सिर्फ वर्ल्ड. हमारे यहाँ वर्ल्ड फीड अच्छा. भाईजान, हम आपसे देखिए, जरूरी नहीं कि हर चीज में हम आपसे पीछे हो, कुछ चीजों में हम आपसे बहुत आगे. हमसे आप हर चीज में आ गए. आप हर चीज में आ गए. हम आज तक आप हमारे से एक दिन बड़े हैं. पाकिस्तान में PSL 2 चैनल्स पर नहीं दिखा पाए कि उर्दू में हो जाए और इंग्लिश में हो जाए. नहीं, वो एक ही उसमें वर्ल्ड फीड पे एक सेशन रैंडमली उर्दू का डाल देते हैं. अब गोरे भी बाहर सोचते होंगे यार की बोल रहे हैं. वो कल जॉश इंग्लिश की बड़ी जबरदस्त इनिंग्स थी ना. वो आज एक बड़ा जबरदस्त मीम आया अपने ग्रुप में. दैट मीम इज, उन्होंने जॉश इंग्लिश की तस्वीर लगाई हुई है और उसके जो 106 दैट ही स्कोर्ड और व्हाटएवर कि उसने 77 बॉल्स में ये स्कोर किया. उन्होंने कहा इंग्लिश, और नीचे एक हमारे बैट्समैन की तस्वीर लगाई हुई है और उसने भी 76 बॉलों में 44 रन किए हुए, लिखा हुआ है और उर्दू. इंग्लिश उर्दू. प्रेजेंस ऑफ माइंड जिस तरीके से उन्होंने वो चीजें पकड़ी हुई. पाकिस्तानियों की मीम गेम जो है ना जी, वो वर्ल्ड क्लास है बाय द वे. हमारे नहीं बनते. हमारा उनका 1 रुपया, हमारे 90 है. तो इंग्लिश और हमारे में इतना फर्क तो रहेगा. ऐसा तो रहेगा. 90 ने 290 ने. अरे यार, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ. Virat Kohli's innings, just a supreme innings by this gentleman one more time, and he's got fans on both sides of the border. Oh, yeah, you know, yeah. people appreciate what he does. और कोई मेरे ख्याल साल पहले वकार वसीम, हमने अपने जो ओरिजिनल प्रोग्राम था हमारा, उसमें हमने जिक्र किया था जब मैंने कहा था कि ये किंग नहीं है, ये किंग कोहली वाला नहीं है, ये एम्परर वाला स्टेटस है. 51 सेंचुरी यार उसकी 51 अंडर प्रेशर, रनिंग बिटवीन द विकेट, एंड तक दुक्के पे दुक्का लिए जा रहा है. और दैट शोज द, और 50 ओवर फील्डिंग कर चुका है. पागल है. Look at the king man. The emperor is top of the master. 5100s, 49 the great man Sachin Tendulkar, then Rohit Sharma 32. Keep pointing मजाक कर रहे हैं. 30 and the गार्जियन ने सानू मार दुम्बा बना दिया. की कुटदा सी I वो. swear. बहुत ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਵੈਸੇ. मारता कब और घसीटता कहाँ था वो.
Yeah, neither is run. Look at that. Look at that. Look, Tendulkar up there with 18,000. Kohli is the fastest to reach 14,000. Yeah, look at that. This is just phenomenal. But you know what I really am doing? आप देखें ये world ratings हैं, top 3 इंडिया से हैं भैया. और इस लिस्ट को कितना लंबा करेंगे कि हमारे नाम आना शुरू हो जाए, इसमें किसी तरीके से कोई पाकिस्तानियों के भी नाम आने चाहिए. हमें लग रहा है मेरी ये लांचा आ रही है पर भाई ये फर्क ये है ना, देखो ही वाजंट इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म, बट कल प्रैक्टिस सेशन इंडियन टीम 2 घंटे पहले गया अकेले. विराट कोहली 20-22 बॉलर्स यूएई लोकल बॉयज को बुला के घंटा 1.5-2 घंटे बैटिंग की अकेले. वाओ. और फिर इंडियन टीम आई है प्रैक्टिस. भाई आज हाँ भाई दिन आज भी अगर अकेले में कर लेता तो हमारा फायदा रहता उसको. आज भी कहते हैं अकेले में कर ले भाई. उसने सेकंड डाल दिया 51 का. I know. It's just fantastic. Let's put some shots that he played again on the screen, because you can't just stop admiring the way he executes his shots. It just again and again. Of course, Pakistani bowling was just not up to par to this, but you cannot take away from what Kohli was doing. Look at that. The balance, his head being so still, everything about it is just absolutely wonderful to see. I think what I admire the most is the intensity, what Wasim bhai just talked about. You know कि ये आदमी पहला, दूसरा, 10वां, 50वां मैच नहीं, 51वां 50 बना रहा है. उसकी रनिंग की बात करें, उसकी गेम, और ऐसा नहीं है कि इतनी एवोल्यूशन है. जो 30वें शतक बनाया होगा और ये 50वां बनाया होगा, आप ऑलमोस्ट रिप्ले की तरह देखेंगे, वही शॉट्स हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी जो है ना, उसको आप बीट नहीं कर सकते. और हार्डवर्क की जो आपने इसने जिक्र किया, वो डिजायर जो है टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड. आई थिंक इनके 50, 100, 51 ये 100 है, बाकी टेस्ट मैच 49 I think. But the biggest contribution that I've always felt that he's made to Indian cricket, and not just to Indian cricket, Indian civilization जो अभी है हमारी, कि एवरेज आदमी को बॉडी की फिटनेस के बारे में सोचने पे मजबूर किया और चेंज करा है वही आदमी. गोलगप्पे का शौकीन था, पूरी छोले भटूरे का शौकीन, और चीकू नाम था. You know, मेरे टाइप का आदमी था गोल यानी कि मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं इसको फॉलो करूं. नहीं तो सब कुछ छोड़ के इसने वो किया है. एन्ने भी बुरे हालात में. तू चीकू नहीं, तू तरबूज है. Yeah, no, but I like people like that. He's transformed Indian mindset of an average person also. Not just cricket में तो कर ही दिया है. क्योंकि सर अब अगर आपका नंबर 1 खिलाड़ी सब 2 घंटे पहले आए प्रैक्टिस में, वो ट्रेनिंग सबसे ज्यादा कर रहा हो, बाकी नए आदमी को तो हमारे जैसा होना तो उसे शर्म तो आएगी, शर्म में ही कुछ कर लेगा. नहीं आएगी. लेकिन आपकी गलतफहमी है, नहीं आएगी. मैंने ना about good 6 months ago I'm diabetic, so मैंने ऑस्ट्रेलिया में था, तो मैंने कहा चलो मैं डायबिटिक्स के लिए ना अपना ब्रेकफास्ट जो मैं करता हूँ, वॉक करके आया. वहाँ पे वही फ्रूट्स, चेरीज, बेरीज, बिट ऑफ ग्रीक कोकोनट योगर्ट, लिटिल बिट ऑफ लेमन, थोड़ी सी खजूर काट के. हाँ, तो मैंने वो खाई, मैंने वीडियो लगाई. अद्धे पाकिस्तानी ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਸਭ ਬਾਤ ਸਹੀ ਹੈ. ਯਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ 36 ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਮਰੋਗੇ. ਐਨੀਵੇ ਪਾਇਨ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ. तो वहाँ सूखी रोटी खा लेना, सालन रात वाला खा ले, कट खा ले. नहीं मैं आपके साथ नहीं प्लीज आई एम जस्ट ट्राइंग टू. आज नहीं इन्होंने खिलाफ होना, आज नाल रहना, ठीक है. मारेंगे. मैं सीट चेंज करना, विकी इधर आ जा. Right. Yeah. So we were talking about Virat Kohli and you know, a bit of a star sports kind of feeling आ गई. थोड़ी सी लोगों को नाराज हो गए, but there were other players who did really well. Ayer was also not behind with that wonderful innings that he और played. इसने भी ब्रेक श्रेक नहीं लेनी है. चल रहे हैं ये देखो, look at this. और मुझे बता रहे थे वो डीके दिनेश कार्तिक के, इन्होंने फर्स्ट क्लास में जाके, इनकी शॉर्ट बॉल की प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, इसने फर्स्ट क्लास में जाके उसको सॉर्ट आउट किया और रन्स किए हैं. एम आई राइट? ये सारे डोमेस्टिक खेल के आ रहे हैं. अब तो इस बार पिछले 2 सीरीज हम भी आ रहे हैं ना, जैसे जल्दी पकड़ लिया. क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज घर पे हम बहुत कभी नहीं आ रहे थे, एक मैच 3 हार गए. फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से आके बोर्ड ने, सिलेक्टर्स ने थोड़ा सा डंडा दिया है और ये पक्का कर दिया है कि कोई अगर डोमेस्टिक नहीं खेलेगा, हम उसे सिलेक्ट ही नहीं करेंगे. ये हम क्यों नहीं कर सकते? वकार भी करते हैं सर, ऐसा नहीं है. करंट है ना, इमोशंस कैसे, उनके भी इमोशंस आ जाते हैं जब वो हारते हैं ना कभी. ऐसा नहीं हम ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जैसे हम इस टाइम हार में बैठे हैं, जैसे वसीम भाई अभी, मेरा मतलब है इमोशनल हुए हैं. ये इंडिया में भी ऐसे ही होता है. ये ना आप कहें, चाहे वो जितने बड़े स्टार हैं, बट look, they take action. ऐसा नहीं है.
they take action. They said, you all go play first class. You're not going to play first class. You're not coming. यार हम तो यही सुनते रहते हैं, एनओसी नहीं मिली, वो फोन नहीं चुक रहा, वो मेल नहीं आंसर कर रहा. इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. अगर आपने 2 लीग्स की एनओसी देनी है, उसका एक लॉ बनाते, खत्म होगी बात. फिर तीसरी की ना दे. इस जिदे कोल परमिशन है वो फोन नहीं चुकता. Wasim bhai has got plenty to say today. I know plenty. Yeah, good. I know everything. Say it. And he's not saying, okay, आपको कह रहे हैं, you said, I don't have anything to say. Honestly, मैं इसलिए कहता हूँ, हाँ आज हारे हैं, आज हमें सबको इमोशंस हैं, गुस्सा आ रहा है, ये हो रहा है. नहीं, ये इससे पहले आना चाहिए. न्यूजीलैंड वाले जब उन्होंने पिछला वर्ल्ड कप हारे थे ना, नकवी साहब ने कहा था मैं ऑपरेशन करांगा, ये करांगा, मैं वो करूंगा और मैं ये करूंगा. आप ऑपरेशन खुला ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करते हो. जब ओपन हार्ट सर्जरी को फिर बहुत दर्द पड़ता है, फिर खून फैलता है. आप उसके लिए सर्जरी इस तरह करते हो कि उसको बंद भी रहने देते हो, लेजर सर्जरी भी हो जाती है. लेजर सर्जरी होती है. लेजर सर्जरी भी नहीं हुई ना, लेजर सर्जरी जरूरी है. वो कैसे कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आई. उसके लिए एक लेजर चाहिए. नहीं, आई थिंक उसके लिए जरूरी ये होता है कि आप फिर ना आप देखें कि कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो ये मॉडर्न डे क्रिकेट खेल सकते हैं. हम पीछे हैं ना दुनिया से, हम यही बात कर रहे हैं. बट यही हम कही जा रहे हैं कि यार वो ऐसे खेलते हैं, वो ऐसे खेलते हैं, ऐसे टक्का ला देने हैं, साढ़ा स्कोर नहीं चलता, हमारी एवरेज नहीं ठीक है, ये वो. अब ये फिर टाइम चले, अब चलो ऐसे ही चैंपियंस ट्रॉफी से ही ऐसे बात कर लो. बट यू जस्ट डू द लेजर सर्जरी विद इन द टीम के. अच्छे कौन कौन से बच्चे हैं, ये कौन कौन से नए लड़के अंदर आ सकते हैं, यंग ब्लड, फ्रेश लेग्स. और फिर जैसे वसीम मैंने कहा ना, उनको भी टाइम दो, साल दो, 2 साल दो, जितनी देर लगती है. अब बीमारी पुरानी है, इसके लिए थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा ना. इसका एक आप जख्म बनाएंगे और वो थोड़ा उसको भरते टाइम लगेगा. तो आई थिंक लेजर सर्जरी जरूरी है. जी देखिए, आई थिंक इट्स मोर इंडिविजुअलिस्टिक. किसको कितनी भूख भी है ना. अगर श्रेयस अय्यर को वो दिक्कत थी शॉर्ट बॉल की, डोमेस्टिक क्रिकेट गया खेला, आज 2 बाउंसर मारे थे उसको हारिस राउफ ने, आई थिंक नसीम को. He didn't attempt to play it. आज से 8 महीने पहले होता तो वो अलग तरीका होता. 2 छोड़ दिया, उसके बाद दोबारा उसको मारा नहीं. बिकॉज एक उसका बॉडी लैंग्वेज, अगर वो अटपटे तरीके से खेलता तो फिर वो सारा दिन वो खाता रहता. कितनी भूख है एक प्लेयर को, कहाँ तक ही वांट्स टू बी सक्सेसफुल. मेहनत तो करनी पड़ेगी ना भाई. बगैर मेहनत को आएगी नहीं. आई एम श्योर कोई भी प्लेयर होगा who wants to go out there and succeed. जी मेरे को जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है. I need to try and say कि भाई if I am on national duty, I need to go out there and put my best forward. I am going and playing against some of the best in the world. But where do I see myself? आईना देखेंगे, अपने आप को आंकेंगे, फिर उसमें मेहनत डालेंगे, तब तो कहीं पहुंचेंगे. all right, very good point there. With that, it's time for a break here in the DP World dressing room. We're going to talk about all this that we've been talking about. कितनी बात करनी है इस पे? ले आओ कबाब. कितनी क्या आपने बात? भाई फिर ब्रेक में लेने दो ना. ब्रेक तो ले लेंगे यार. आप तो बोलो, आप ब्रेक अभी आई नहीं और आप पहले से उठ के भागने के चक्कर में. मैं का कबाब ले आऊं, वो लेके. All right, guys, we'll see you on the other side of this break. Stay with us. Welcome back to the DP World Dressing Room. I'm Fakhran and you're watching 10 Sports. Our continuing coverage of the ICC Champions Trophy. With me in the dressing room, I've got Nikhil Chopra, I've got Waqar Yunus, the great Wasim Akram and Ajay Jadeja. We're talking about the game that has concluded in the Dubai International Cricket Stadium where India has dominated Pakistan one more time. And there were a few things, Wasim, that you wanted to talk about, specifically Imran Ahmed. That ball that he delivered to Gill was really special. Yeah, it I was very nice. impressed with the ball. I wasn't impressed with his celebration. Time और जगह होती है ना यार. जितने हो तो ठीक है, सेलिब्रेट कर लो, कपड़े ला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. कपड़े I'm just an example यार. But सही ड्रेसिंग रूम वाला माहौल. पता है कि फंसे हुए हैं, विकेट मिल गई है. Be humble. But that's not happening with. इसको बताने वाला कोई नहीं है ना. वही जो जड्डू कह रहा है, मैं होता टीम में या वकार होता हूँ किसी में. क्या बॉल था, incredible delivery. And then the celebration killed Allah. Just 7 out कर गया ना, 5 score देके, तो I can understand. I never Great saw... delivery. Great delivery. The delivery, no question about the delivery. There is no question, but I don't understand this. Allah. कर लो गाल. Okay. It doesn't look nice. I mean, it's not even nice. Look nice on TV. No, but I remember
Akib Javed picking up 7 wickets in Sharjah. I never saw something like that from him. I've seen you picking up आकिब तो 3rd मैन वालों निकल गया सी नहीं नहीं वो ठीक है, वो सेलिब्रेशन है, ये इस तरह की कोई फनकारियां नहीं ना होती थी बेसिकली सारी की सारी। हैट्रिक भी की थी उसमें उन्होंने हैट्रिक लाई थी नहीं, मुझे याद है मैंने उत्थे भी आवाज लाई थी, वापस आ जा। वो एक्साइटमेंट में सीधा निकल गया था, इट्स ओके ठीक है, बट 7 विकेटों में निकला था। या हैट्रिक, उसमें हैट्रिक वो भी इंडिया के खिलाफ, वो आपके इंडिया के खिलाफ थी ना। और आपने कहा ना, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिकॉज़ सम थिंग्स यू हैवंट हर्ड। बताएं चले, मौके का फायदा उठाएं, बताएं। देखिए ग्राउंड की बात है, ग्राउंड में ही रह जानी चाहिए। एंड एज आई सेड, वो यार ये मैच बहुत टक्कर का होता है। हम यहाँ पे जैसे कल, you know, it is the greatest game and that is why I'm disappointed because it wasn't the greatest game today. So मैं यही आपको कह रहा हूँ, why it is important. Actually, let me just say this for a second. Go back to the commerce of the game. It is also important for the Indian cricket that Pakistan cricket doesn't slide so far back that वो जो इतनी बड़ी rivalry है, that generates so much revenue, so much interest, so much television rights, ki fights, this, that, the other, that will all fade away. It's faded away. It's already fading away, but it will further erode if we don't get this under check. So I think ये तो मुझे यूं लग रहा है कि अब ये सिर्फ पीसीबी का इशू नहीं रहेगा, but I think even ICC will have to start looking into this कि यार वो ये क्या कर रहे हो यार। ICC इसको सॉर्ट आउट नहीं करेगी, ICC आपको वो बाहर कर देगी। हाँ, कि आपकी रैंकिंग्स रैंकिंग आप बाहर हो जाएगी। टीमें हुई है ना, वेस्ट इंडीज देख ले, यार वेस्ट इंडीज गायब हो गई है, कोई सोच भी नहीं रहा। वही ना, 2 वर्ल्ड कप हो गए हैं, वेस्ट इंडीज नहीं है। हम बड़े हुए थे वेस्ट इंडीज क्रिकेट को देख के, दुआ करते थे क्लोज आ जाए, फॉरगेट विनिंग। So it can happen to any team and they should be careful as well. There's another including thing. us. Yeah, absolutely. And Wasim, another thing that you wanted to discuss was Naseem Shah's follow through today. Yeah, I wanted to ask this Waqar. He probably worked with him, but वो Waqar जब अब शायद दिखाते हैं आपको उसका एक ये किया बॉल इसने ये रुक गया। So why do you think he does this? इसको थोड़ा आगे और नहीं जाना चाहिए to generate more pace? ये करके 2 के दिन भाई रुक जाता है, साइड पे आ जाता है। इसका आगे जाता था किसी ज़माने में ना, आगे ज़माने में एक ज़माने में ये ऑल द वे टू द यू नो टू द बैटर पहुंच जाता था। और आई गेस उसमें उसकी बॉडी ज़्यादा बेहतर लगती थी। वहाँ बॉडी बिल्डर, इसको इंजरीज बहुत हुई उसी भाई। He had back injuries, he had groin injuries, इसका एक्शन थोड़ा सा नीचे जिन्होंने कहते हैं ना, ऐसी कैंची पहन दी थी, वो लोड इतना पड़ता है बैक के ऊपर, तो his pace is down. I remember जब ये पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया ले गए थे तो he was bowling 155, 156. It was that sort of pace और zip के साथ जाता था गेंद ना। But over the years इसको injuries इतनी हो गई हैं कि I guess he holds back or he got a fear in his mind कि मैं इसको push करूँगा तो you know. But at this level you just can't hold back, unfortunately. You can't. It's got to just be 100%. Let's take a look at the myths. Sorry, go ahead. No, I'm just taking the opportunity with two greats here. Please. Why is it that some kid who comes, and it's not just about Pakistan, I mean India, other kids around the world as well, who have no formal coaching, no X, Y, Z, training schedule, diet, physical fitness, and bowl 150, 145, whatever the pace is. And when they come and play for their countries, that's when they get injured. And then because it's the same action they've come with, it's the fitness that they came with, or it's the diet that they came with. Why is it that in today, because ये past में नहीं होता था आप लोगों के ज़माने में, अब क्यों होता है कि वो आते हैं 150 करते हैं या 40 या जिसकी भी जो स्पीड, जिस वजह से आते हैं टीम में, आते हैं और फिर जब यहाँ पे सब कुछ है तो सपोजिटली कि यहाँ कोचिंग बेहतर है, यहाँ डाइट बेटर है, यहाँ ट्रेनिंग बेटर है, यहाँ सपोजिटली, मैं तो ये वो कहता हूँ सपोजिटली है ये बेटर, क्योंकि वो अगर घर से ये करता हुआ आया, यहाँ पे आगे क्यों स्लो होता है, वो एक सवाल है मेरा जो थ्योरी है विकी, तू बता दे पहले कि वही ना बहुत सारे कोचेस हैं, सो एवरी कोच उसने अपनी जॉब भी दिखानी है, सो कई दफा वो अननेसेसरीली कोचिंग कर देते हैं टू शो दैट ही इज डूइंग हिज जॉब, राइट, एंड दैट समटाइम कैन, वो किसी एक कोच ने ये कहा, उसने ये कहा, बच्चे को ये नहीं पता मैंने करना क्या है, उन कोचिंग मेन कोच को बताना है कि तुमने इन बॉलर्स को अननेसेसरी कुछ नहीं बताना अनलेस आई एम नेक्स्ट टू दीज बॉलर्स, बिकॉज यंग होते हैं ना लड़के, वो बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। आई थिंक मुझे अभी भी याद है जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान से खेला था तो स्किपर ने मुझे बॉल दिया, उसी में आपको भी शायद याद हो, मुझे बॉल दिया, उन्होंने कहा 10 तुन के रख, तेज करना है, एंड दैट वाज हिज कोचिंग टू मी, कि बॉल स्लो नहीं करना है, बस जो भी हो 4 ओवर करो, 3 ओवर करो,
आपको उसको पेस आनी चाहिए, पेस नहीं नीचे आनी चाहिए। एंड मैंने उनके अंडर को 4 साल खेला होगा 92 तक ना। तो 92 तक उन्होंने, हालांकि बैक इंजरी भी हो गई, बीच में मुझे तकलीफ भी होती थी, बट ही वाज जस्ट सेइंग कि इसको नहीं नीचे आने देना, इंजरीज आएंगी। लेकिन अब ये है कि ऑफ कोर्स बैक फ्रैक्चर्स, बट आई फील के यू आर 100% स्पॉट ऑन के जैसा कोच होगा ना, जैसे कोच की सोच होगी वैसा बॉलर बनेगा। अगर आपका जो कोच, बॉलिंग कोच, आप जो भी डोमेस्टिक पे या जहाँ पे भी, अगर वो स्लो मीडियम पेसर था या मीडियम पेसर था, तो वो उसी तरह सोचता है। याद रखना, वो उसी तरह सोचता है। मैं करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार तेज होना चाहिए, हाँ डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन उसी डिसिप्लिन से वक्त उसे सिखाएगा कि मैंने ये डिसिप्लिन इस पेस में कैसे लेके आना है। लेकिन अगर मैं स्लो मीडियम पेसर या मीडियम पेसर होगा ना, तो मैं कहूँगा अच्छा पहले तो ऐसे सुट, पेस छाड़ दे, तो पेस इस तरह कर, फिर बाद में देखें। बट जब तक वो सीखता है उसकी पेस नीचे आ जाती है, एंड देन इट्स हार्ड टू गेट बैक टू द सेम पेस। टू गो फॉरवर्ड, जस्ट टू टेक अजय भैया पॉइंट फॉरवर्ड कि किस तरीके से एक प्लेयर जो डोमेस्टिक क्रिकेट से आके इंटरनेशनल क्रिकेट में एकदम से इंजर्ड होने लगता है, सो यू गो बैकवर्ड्स। हमारे पास एक ट्रेंड चल रहा था, इंडिया में भी ओवरसीज के कोचेज आ रहे थे, पाकिस्तान में भी ओवरसीज के कोचेज आ रहे थे, उनके ट्रेनिंग मेथड्स डिफरेंट था। आप अगर किसी को 10 राउंड दौड़वा रहे हो, 8 राउंड दौड़वा रहे हो, फिर बॉलिंग करा रहे हो इंटरनेशनल क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में वो नहीं हो रहा। डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको उस तरीके की ट्रेनिंग नहीं मिल रही, और फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरीके से ट्रेनिंग कर रहे, बॉलिंग कर रहे हैं। तो पाजी अनअकस्टम्ड यूज मसल विल ब्रेक डाउन। सो द आइडिया इज जो फर्स्ट क्लास, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में एक टीम फॉलो कर रही है, दैट हैज टू फिल्टर डाउन इन द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सो दैट यू डोंट हैव टू बिग अ ब्रिज ऑफ अ गैप। तो एक फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो, जो ट्रेनिंग मेथड इंटरनेशनल क्रिकेट में चल रहा है, वही चीज तो फर्स्ट क्लास में क्रिकेट चल रही होनी चाहिए, बिकॉज उसी के नीचे तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हो। So there cannot be two different things happening. Yeah, sure. Quickly, नसीम शाह का जो पहला टेस्ट में ओवर था, फर्स्ट ओवर ही bowled in Test cricket. First ball was 90.29 miles. Yeah. Second was 90.7 miles. Third was 89.41, 89.73, 91. Average speed was 90.71 miles per hour. What is his average speed now? How long ago was this? This is 148, 49 average. तो मैं वही कह रहे हैं कि वो तो घर से करके आया होगा ना, उस वक्त तो किसी ने उसको नहीं सिखाया। यहाँ पे उसका जो एक्शन था, गेंद भी मुझे याद है ऐसे चढ़ता था, जो आप कह रहे थे ना फॉलो थ्रू नहीं है। तो भैया यही समझने की कोशिश हो रही है कि क्यों जो घर से करके आया है, सपोजिटली इंफीरियर है, वो ये प्रोड्यूस कर रहा था जो आपने अभी नंबर्स बताए, और अब जो सपोजिटली बेस्ट उसको जो मिल रहा है सपोर्ट सिस्टम। आज तो मालिशें हो रही थी ग्राउंड में, मैंने देखा, यू नो, इंडियन टीम की बाद में बात करेंगे, while the game, so you have everything that you want, and then you go down, there has to be something that goes wrong, because that person wants to still bowl fast or wants to be as good as he was. I just want to know one more thing from all three of you. आज वाटर, फर्स्ट वाटर हुआ है कि सेकंड वाटर ब्रेक हुई है, पूरी ट्रे आई है केलियां दी। एने केले ते बांदर नहीं खांदे, उन्हां दी खुराक है ना। ये तूने कितने केले खाए हैं बॉलिंग करते हुए? Can't remember that. Imagine हम अगर केला खाए, स्किपर हमें देख लेते हैं इमरान भाई, उन्हें उत्थे छितर ला लेना। आप केले की बात कर रहे हैं, कपिल पाजी ने हमें तो बाद में खुद कभी प्रैक्टिस सेशन 1 घंटे का हो, 3 घंटे का हो या 5 घंटे का हो, प्रैक्टिस सेशन में एक सिप पानी नहीं पीते थे। वो कहते थे बॉडी को ट्रेन भी तो करो। आज की डेट में आप बॉलर को देखना, वाटर ब्रेक एक ओवर नहीं, एक ओवर नेट में 2 बॉल डाल के पीछे पानी लेके खड़ा है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है या ये सही है। आप हार्डशिप से गुजारते थे ना, हार्डशिप से गुजरोगे तब आपको जब इजी मिलेगा तो वो मसला नहीं होगा। आज पाकिस्तान टीम भी काफी हार्डशिप से गुजरी है। Let's take a look at the missed opportunities by Team Pakistan today against India. We'll play these on your screens. Look at this. This was the first catch that we dropped. Outstanding there. Harisov की बॉल थी। And there you have it. नहीं, और अभी रोहित आउट ही हुआ था थोड़ी देर पहले, है ना, ये एक माहौल बन सकता था, माहौल बन जाता है ना, कि कभी गेम यहाँ से ऐसे ऐसे घूम सकती है। कभी पहला ओवर डाला ही था, हारिस का तो पहला ही था, तो उसका पूरा स्पेल अच्छा चलता। ये होता है, छूटती तो है ही कहीं ना कहीं। This was a game. है कि बैट्समैन वो अथलान चला सी, अन्ना आगे खड़ा सी। No idea. ये and it was ये क्या था ये?
He was too okay. सिंगल बचा रहे हो आप, बट आप तो बिल्कुल कैचिंग पे खड़े हो ना, थोड़ा सा पीछे होना चाहिए था. And then this ये केड़ा कैच है, रन आउट. नहीं कैच नहीं, रन आउट की अपॉर्चुनिटी थी, but नहीं भाई, गेंद तो पकड़ना नहीं, थोड़ा तेज आ जाए कि गलती से हाथ को ना लग जाए मेरे को. या विकेटों के पीछे आप पूरा जो नॉर्मल बताते हैं आपको कोचिंग में, बिहाइंड द स्टंप्स आओ, और ये बॉल लगना है, इट्स ओके, बेयर इट. Yeah, I know. वैसे भी कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होती. हाँ, अच्छा. don't they say that? They're saying. There is a saying. I know, I'm sure there is a saying. मगर आज तो 30 टीम मारता है, ऐसे कोई डाउट नहीं है. दोस्तों ये कहानी फिर किसी और तरफ चल पड़ी है. मेरा ख्याल है इस वक्त ब्रेक को दर्द नहीं होनी चाहिए. We're going to take a break right here on the DP World Wrestling Room. See you on the other side. Welcome back to the dressing room. I'm Fakhri Anam. This is 10 Sports. You're watching our continued coverage of the ICC Champions Trophy. The news out of Dubai, India winning this one against Pakistan, and a lot of introspect for Pakistan to do. Let's talk about the Indian bowling. Again, a wonderful effort by the Indian bowlers. Let's start off with Kuldeep Yadav. Wasim, you've been saying Kuldeep is somebody who's been troubling Pakistan for a very long time. Yeah, I've been saying it for a couple of years, and देखें उसका आज record देख लें फिर. किसी को समझ नहीं आई, गुगली है, लेग ब्रेक है, क्या है, कुछ नहीं पता. ये गुगली थी भाई, लेग ब्रेक खेले, मिड विकेट की तरफ, टॉप एज और ब्रिलियंट कैच. क्या फील्डर है यार. 36 साल का होगा जडेजा. ये भी फिटनेस का है ना काम. नाम में ही सब कुछ है. नाम का ही कमाल है. कैसे अपने आप को एंड में सेट किया इसने. दिस इज फिनोमिनल. और ये भाई लेग ब्रेक खेला, बाहर निकली खेले थे, अंदर आ गई बॉल. उसने रिव्यू कितनी तेज ली है. मैं समझा कि मिडल हुआ है बल्ले में. मिडल हुआ है बल्ले में. दे रिव्यू चेक कर. Yeah. I had no idea. Yeah. तेरे ट्रेन का दरवाजा चाहिए, खिड़की बंद की थी. रिस्ट स्पिनर का ये फायदा होता है. ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रिस्ट स्पिनर का फायदा होता है. अगर आपके पास रिस्ट स्पिनर हो तो आपके जो लेटर ऑर्डर बैट्समैन होते हैं ना, या मेरे जैसे टेल एंडर जो होते हैं, उनको नहीं समझ आती, और आपको स्कोर जल्दी चाहिए होता है या एवरेज जल्दी चाहिए होती है, और मिडिल में स्कोर भी रुक जाता है. आंखें बंद करके चलाते हो, अल्लाह तवक्कल के यार शायद बल्ले में लग जाए. अब देखिए ये ना, होता है. अब आपने रखा फ़हीम अशरफ को 15 में. ना वो कोई मैच खेला, मेरा नहीं ख्याल वो अगला मैच भी खेलेगा, और उसकी जगह एक्स्ट्रा स्पिनर होता तो आज वो खेला होता. सुफियान मुकीम जो भी लड़का है, उसने एक मैच खेला है, 4 आउट किए साउथ अफ्रीका को, उसके बाद नहीं खेला वो. ये अभी रिसेंट पास्ट की बात कर रहा हूँ. मंथ अगो में भी साउथ अफ्रीका उसने 4 आउट किए थे, इसलिए उसको नहीं I खिला. don't know what's the reason. I hope what Pakistan and what we need is clarity. आके एक्सप्लेन कर दे. ये ना कहें कि we gonna surprise you tomorrow, because that was very 90s thing to say. That is very 90s. Hardik Pandya, one more time, the Pandya magic. I mean, this man is such a great utility player for Team India, because when he came out to bowl, it looked like both Babar and Imam are going to set a very big foundation. And Babar had just started timing those deliveries and started getting some boundaries when Pandya broke that partnership. And then look at that. And not only that, the figures, Vakar, 8 overs, 31 runs, 2 wickets, 3.88 average run rate. I mean, that he could... I think because Virat got 100. Yeah. I mean, 100 का कोई मैच नहीं होता है. Otherwise, हार्दिक का जो स्पेल था ना, ये एक्चुअली मैन ऑफ द मैच स्पेल था. ऑल्दो सिर्फ 2 ही विकेट्स थी इसमें, लेकिन वो जो वहाँ पे बाबर को आउट करना, उस वक्त जब बाबर थोड़ा सा डेंजरस लगने लग गया था, ऐसा लग रहा था कि ओल्ड बाबर दिखना शुरू हो गया था, तो वो जो पार्टनरशिप ब्रेक हुई. हम बात करते हैं कि हार्दिक पांड्या शायद 10 ओवर का बॉलर नहीं है, लेकिन आज उसने प्रूव किया कि व्हेनेवर टफ टाइम जब भी होते हैं, he doesn't shy away. And that's the beauty of Hardik Pandya. He's a tough nut, tough cookie. Went through a lot of injuries also, but whenever the country needed him, every time. Take me. हर टफ सिचुएशन में आप देखोगे वही गेंदबाजी करता होना. जी. या तो ये उसके लिए बना है, या कप्तान उसको इस तरह यूज करता है, वो इनके बीच बात है. लेकिन हर मोमेंट जब ट्रबल, आज भी शामी बाहर गया था जब ये आया जल्दी. So at that stage you don't know क्या होने वाला है. आपको याद है जब ये T20 का वर्ल्ड कप जीता है इंडिया, तो फाइनल में साउथ अफ्रीका was looking unstoppable. लग रहा था ये क्लास खत्म कर देंगे. And the captain went to who?
went to Hardik Pandya, and Pandya immediately delivered that blow where the gap, the crack opened up, and Team India won. फिर लास्ट ओवर भी उसी ने किया बिल्कुल. That's what I call a character. Yeah. That's a character. When I say characters की जरूरत है, that's what a character. I think he's a great student also. जिस बॉल पे बाबर को आउट किया उससे पहले चौका भी खाया कवर्स में, लेकिन वो थोड़ा आगे किया था. हाँ, लेकिन he was very upset with himself. करेक्ट. एक बॉल बाजी हिला, वहीं से चौका खाया. प्लान यही था कि आगे डालना. He realized कि थोड़ा सा आगे गिरा, but that correction in length, that thought process, थोड़ा पीछे खींच के I'm going to bowl the same ball. So he's a great student also. He corrects himself. By the way, this is not, even in the Ahmedabad game, the World Cup game, it was Hardik Pandya that set him up for that when Babar cut onto his own stumps, played on, trying to late cut him. But just fantastic what he does. And big game for Harshit Rana today. You know, this was a big stage, India-Pakistan game. And for him, the first outing on this kind of a pressure game. Look at that. He also went about his business. Just one wicket. पहले 3 भी स्लोअर वन डाली, वही फील्ड रखी हुई है, वो करता चला गया. बैट्समैन उसको भी पता है कि सिर्फ ये सिंगल डबल करेगा नहीं. तो आई थिंक ही इज यूज्ड हिज वो अपर जो होता है कि अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बेस्ट किस तरह से यूज कर सकता है. एंड आई मस्ट गिव क्रेडिट बिकॉज यू नो जब अच्छा नहीं होता तो हम कोच और कप्तान के पीछे पड़ते हैं, क्योंकि हर्षदीप सिंह को जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड खिलाड़ी है और मेरे को एक्चुअली बेटर लगता है बॉलर, वो अपनी जगह है, बट उसके बावजूद इसको उन्होंने शुरू से खिलाया और इस बड़े मैच में भी इसको आगे रखा है. क्यों बोला? क्यों? व्हाई? सर ये कॉन्फिडेंस है कप्तान का या कोच का? नॉट ओनली नहीं, क्योंकि मेरे को अच्छा लगना कोई जरूरी नहीं है ना. आई थिंक इट्स नॉट ओनली कॉन्फिडेंस, इट्स आल्सो समथिंग न्यू. You know, अगली ऑपोजिशन ने इसको खेल नहीं रखा. I believe आज की डेट में वो चलता है. आजकल की डेट में ये छोटी-छोटी ये होती है इन्फॉर्मेशन जो डाटा हम बात करते हैं, तो these are the things जो आप 15 लेके जाते हैं, अगर आप उसको इसी तरह रखें ना कि यार आप भी खेल सकते हो, आप भी खेल सकते हो, हर बंदा तैयार है, होना ही चाहिए ना. देन सर बाहर बंदे पता कौन बैठे हैं? हर्षदीप सिंह, मेरा फेवरेट ऋषभ पंत, एक और कौन है? यशस्वी भी है, वॉशिंगटन अभी टीम में चक्रवर्ती. चक्रवर्ती ने पिछली सीरीज में सबसे ज्यादा विकेटें ली हुई है और वो सबसे ज्यादा मिस्ट्री है और वो अनलीश होगा जब ये इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन टीम में आएंगी. कि वो 15 लोगों में से किसी को भी खिला रहे हैं और सब 15 जो हैं वो खेलने के लिए आए हैं. Bases kind of covered. हाँ, when you make a call, हार जीत होती रहेगी, but they making calls. And I'm happy to see कि नए लड़के को कॉन्फिडेंस मिला है. चड्डू, आप जितना भी किसी का डाटा में या वीडियोस देख लेना, खेलना और बात होती है, ठीक है ना. अगर आपने उसको खेला हुआ है पहले ना, तो फिर इतना मसला नहीं होगा. लेकिन अगर आपने उसे टोटली खेला नहीं है ना, सिर्फ टीवी पे देख के आए कि यार ये भी करता है, ये भी करता है, इसको ये देख लेना, ये देख लेना, जब बॉल निकलेगा ना उसके हाथ से, आपने अगर उसको खेला नहीं है तो प्रॉब्लम. Simple. All right, folks. With that, it's almost time for #Ask the Room, and it's a pretty angry room that we have on online today that I'm anticipating. But all your questions will be answered by our friends right here in the DP World Dressing Room. पुट्ठे सवाल ना पूछना आज आएंगे सारे पुट्ठे सवाल भाई. पहले से वार्न कर रहा हूँ आपको, डोंट बी अलार्म्ड. अपने रूम में भी सारे सवाल ऐसे ही हैं सब. जी हाँ, बिल्कुल ऐसे हैं. So #Ask the Room. You can ask a question. Ball will be signed by all 4 gentlemen and will be dispatched by DP World to wherever you are. You are watching the DP World Dressing Room. I'm Fakhri Alam and this is 10 Sports. Stay with us. Welcome back to the DP World Dressing Room. I'm Fakhri Alam. You're watching 10 Sports. And our continued discussion post-match, India versus Pakistan. Another dominating performance there by India against Team Pakistan. And a lot of questions hanging on that Pakistani team performance and the state of affairs in Pakistani cricket. With me in the dressing room, I've got Nikhil Chopra, Waqar Yunus, Wasim Akram, and Ajay Jadeja. We're going to be taking your questions and answering them. #Ask the Room, that's the thing. But before we get going, let's take a look at the DP World Beyond Boundaries initiative right now. This is how it went down today. The runs scored all together, if you put the hundreds together, ये सूरत हाल थी. 400 run आज हुए हैं. So there are 40 kits that are going out today. As I've told you earlier as well, that it is the ICC DP World Initiative where cricket kits are distributed to deserving grassroots level players who need to be nurtured.
around the world, no matter where it is. So well done, DP World, one more time. 40 kits that have gone out because that. अगर वो 500 से ज़्यादा run होते, तो of course it will be 50 kits. But you know, कल तो मैंने हज़ारों ही थी. 700. 70 kids. 70 kids went out because total 700 runs से ज़्यादा. I'm just kidding. It's that time of the night. It is that time of the night. And with that, it's time for the DP World dispatches of the day. Let's take a look. बच्चे कितना लंबा शो है. लग रहा है. क्वेश्चन तो सही. आज हम सुरदे आज पे नाग बन के दिखा रहे, नहीं कर रहा मैं. बट इसको तो जो बीच का पीरियड था वो इतना अच्छा नहीं गया. खुशदिल शाह कुछ बेहतर खेल रहे हैं. पाकिस्तान ने ये भी नहीं किया कि उनको थोड़ा चलो उतने ही भेज के देख लो. तो आई थिंक पाकिस्तान मिस्ड आउट क्वाइट अ बिट ऑफ अ ट्रिक देयर. बट देन these are the proper dispatches. Yeah, Proper. These are real dispatches. These are the DP World dispatches. These are the dispatches that reached home. Yes. actually What DP World does. Yeah. The other dispatches were not from DP World. yeah. Right. And it's time for the DP World Smart Performance of the Day. Who else could it be? The DP World Smart Performance One and only of the the Day. Emperor. The Emperor himself. I don't know who it is, but I assume that should be it. Yes, it is. It is indeed the Emperor himself. जिसको चेस मास्टर कहा जाता है और आज फिर दिखाया. चेस करने आए and you saw the best King Kohli going out there. स्टार्ट मिला, स्टार्ट को किस तरीके से कन्वर्ट किया, जब चाहा रिस्क फ्री चौके और शगन जड़ा. 51वां शतक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में. All right. With that, time for the fastest delivery of the day, brought to you by Food Panda. ये किसकी होगी? नहीं, हाँ हारिस की. Yeah, there you have it. It is No, Shaheen Shah Afridi, not Haris Rauf today. 142 something I think. 145 plus होगी. 144 today. Wide नहीं है. 144. Too late now. It wasn't given as a white by the way, this one. But it White was ball, 144. Just inside the line. I think. Just inside the line. 144. 144 there. Brought to you by Food Panda. And it's time for the DP World Smart Stat of the Day. That's the Smart Stat. Right. All right. There you have it. India hit 11 boundaries. Sorry, guys. Idiots. But you guys, what do you mean idiot? I'm idiot. वो बेचारे वो तो पीछे बैठ जाते सारे. यार तुम लोग मेरे अच्छे भले मेरे जलसे में पथराव कर देते हैं आप लोग. चल ला कर कम. नहीं कि तुसी कर लो कम. यार मैं ऐसे आया हूँ तो कैमरा वो वाला था और विकी कहता 15 नाक का आ रहा है कैमरे रिश्ते में पीछे. I'm sorry. I don't know what to say. I was actually मेरे सामने है टेलीविजन, ठीक है ना. आप लोगों को नजर नहीं आ रहा देखने वालों को. मेरे सामने है बिल्कुल. और फखर का कैमरा वो है. मेरा कैमरा. वो कैमरा है. और वो उस एंगल से जब वो कैमरा पड़ता है ना, तो वसीम भाई जब ऐसे बैठे हो ना ऐसे, आगे तो वो फिर ये मेरा नाक भी तो 2 फुट का है ना. तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि थोड़ा पीछे हो जाए. I'm just going to cancel out that DP World Smart Stat of the Day. I think the Smart Stat of the Day is that Wasim has a long nose that keeps coming in my frame. That's the DP World Smart Stat of the Day. Yes. Oh, and serious. I like your glasses, by the way. Yeah, I would like to thank Harbhajan Singh. बहुत शुक्रिया आपका. वो स्पेशली इंडिया से मेरे लिए लेके आए हैं 6 पेयर. पूरी बोरी भेजी है ना. पूरी बोरी, लिटरली बोरी लेके आया है. बड़ा थैला दिया उसने और उसने मेरे ये सारे डिफरेंट कलर्स में है. इट्स अ वेरी गुड मेक. मैं बताऊंगा कि कौन से हैं ये. स्टोन 3D और सारे उन्होंने मेरे ये lenses नजर के करा के दिए हैं. So thank you very much, Bhaji. Really good quality there, Bhaji. Yeah. 3D glasses. Please, yeah, they're 3D printed glasses, Yeah. Bhaji. You must share the royalties with us because we promoted it on this show. Oh, holy smokes. तू लग रहा है 500 चल रहा है. ओए उन लग रहे हो Wow. रैपर. एक रैप हो जाए. This is not, these are not glasses, भाई. ये तो दूरबीन है. नजर क्या है भाई. Ooh, I can see everything in very, very close up. With that, we're going to take a break right here on the DP World dressing room. When we come back, it's your questions and their answers. Stay with us.
Oh, Faisal, we're on air. Whoops. Gulare, clean karein please apne. Welcome back to the DP World dressing room where the boys are being very naughty right now. Boys are I've got 4 boys with me, very, very naughty 4 boys with me. I've got Nikhil Chopra, Waqar Yunus, Wasim Akram and Ateja Deja. And break पे हम लोग जब जा रहे थे तो हमने आपको कहा था hashtag ask the room will be next, and it is time for hashtag ask the room. All set for that. And this is how we're going to go about our business today. Hashtag ask the room पे सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि सवालात शुरू करते हैं. And okay, whoa, there are a lot of angry questions here. Wasim Akram, Jay Shukla, आपका सवाल है. If I win the signed ball today, can I also please get one of Wasim Akram's sir's fancy glasses? या फिर पक्की सर को बोल के DP World से dispatch करवा दो, please. साथ ही ये सबसे पहले क्वेश्चन है ये जय शुक्ला. जय साहब, आप तो बड़े चालाक निकले हैं. ये तो आप बहुत एक बात पक्की है, जय शाह भी लाइव देख रहे हैं. Yeah. Okay, so where do we start from? Because you want to start from, I believe, okay. Mantri, Prathamesh, Mantri, please do apologize. If I get anything wrong, I do apologize sincerely. I believe fitness is something Pakistan team should work on. It's top priority and other things come next. Once you are physically and mentally fit, then you can think of achieving something. What do you guys think? Open for everyone. Easy question. Fitness is something... The gentleman is saying, Yeah. Prathamesh is saying, I believe fitness is something Pakistan team should work on. Yes, sure. It's a top priority and other things can come next. Once you're physically and mentally fit, then you can think of achieving something. What do you guys बिल्कुल think? ठीक है. 100% you nail it on the head. और इसमें आपको पता है, हर एक को पता है, it's not a rocket science. It's just norm to at that level representing your country in any sport. You got to be supremely physically fit. And कई लोग कहते हैं नहीं मैं mentally fit हाँ. Physically fit doesn't matter. No. Physically fit हैं तो फिर आप mentally fit हैं. Other way around it won't work. It will never work. Next question is from Ali Ibrahim. Ali Ibrahim is saying, hashtag ask the room. Ali Ibrahim says, has the influx of money, marketing and social media fame made Pakistani players more focused on their reputation than their actual performance? Is branding overtaking the love of the game, Bakar? भाई ये बड़ा मुश्किल सवाल. नहीं might be. लोग इफेक्ट तो हुआ है, ऐसा तो नहीं कि आप इफेक्ट नहीं हुई. क्रिकेट इफेक्ट हुई है पाकिस्तान की, स्पेशली क्रिकेट. पाकिस्तान की क्रिकेट आई फील के 2 चीज़ों से इफेक्ट हुई है. एक तो ऑफ कोर्स क्रिकेट का पाकिस्तान में ना खेलना. 11-12 साल पाकिस्तान में क्रिकेट हुई नहीं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने अपने स्टार्स को नहीं देखा खेलते हुए. इसीलिए आपको स्टेडियम में भी फुल दिखते हैं कि भंगर एक बहुत ज़्यादा है. एक तो वो फैक्टर ज़रूर है कि जी हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है या हमारा जो स्कूल क्रिकेट, कॉलेजेस और क्लब क्रिकेट, उसने सब ने सफ़र किया इस बात इस इंसिडेंट से. और दूसरा फिर ऑफ कोर्स जब आप स्टार बनते हैं तो उसको आप किस तरह लेते हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है. आई फील कि अगर तो आप क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट से लव करते हैं, यू वांट टू बी द ग्रेट और यू वांट टू रियली लीव योर लेगेसी एंड नेम, देन मनी कम्स सेकंड, ब्रांडिंग कम्स सेकंड. ब्रांडिंग होती जाती है. आप जो अच्छा खेलते जाते हैं, आप परफॉर्म करते जाते हैं, आपका एक नाम बिल्ड होता है, तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी वो बन जाती है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं वो जिन प्लेयर के आड़े में आ जाती है, रास्ते में आ जाती है, वो सफ़र करते हैं. All right, fair enough, very good. just to add to and defend, because जो उन्होंने सवाल पूछे हैं ये सब चीज इंडिया में भी हुआ है. नहीं तो वहाँ तो बेनिफिट हुआ इसका. आप सवाल दोबारा पढ़ें. नहीं, आप जो आप बेनिफिट नहीं, आपकी वो बात में बिल्कुल सही. आपको पहले वाला जो जवाब, पहले वाला बिल्कुल पहले वाले जवाब का एक बड़ा मेजर रीजन है, क्योंकि इसमें वो कह रहे हैं ना कि ये सब बढ़ गया है इसलिए शायद क्रिकेट डाउन. मगर ये सब इंडिया में भी हुआ है ना. ये तो जनरेशनल है, हर जगह हो रहा है. All right, next up we've got Fahad Khan. Abhishek, Jaiswal, Sanju, Rinku, Tilak, Sky, Bumrah, Bishnoi, Nitish, Ashdeep, Pant, Varun. यकीन कीजिए ये वाली टीम से हम नहीं जीत सकते, हम इनसे भी नहीं जीत सकते. That's all his observation. तो फिर 2 डालो इंडिया दी. यही कर सकते. नहीं, they can actually एक टाइम नहीं ऑस्ट्रेलिया ने किया था, वो ट्रायंगुलर होंगे. इंग्लैंड था, ऑस्ट्रेलिया था
और एक और ऑस्ट्रेलिया ए टीम, 2 ऑस्ट्रेलिया होती है, एक बार हम भी गए थे। फ्लूइड बड़े बड़े प्लेयर थे, वो आगे जाके सारे ऑस्ट्रेलिया के लिए। Prem Mohanty says Pakistan coach said that they will surprise India. Question for both Waqar and Wasim: what exactly was the surprise? विकी, I don't think we should be answering that. He's asked us. प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कल बका उसने? नहीं, उसने कहा है ना कि सरप्राइज, तो मुझे तो यही नहीं पता था सरप्राइज क्या था, तो आई थिंक आकिब इज अ बेटर पर्सन टू आंसर दिस कि जी मैं कौन सा सरप्राइज था, बिकॉज आई डिडंट सी एनी सरप्राइज. All right. We've got a lot of. Acha Janab, Faisal Abbas, Shaheen taking that review after a plum LBW immediately. Where does this overconfidence come from? Why does no one in the dressing room see that Naseem is a much sensible batter than him? I think जो रिव्यू फौरन लिया है वो तो ये था कि साढ़े को 2 पे ने कार लैग की करने ने ले लो. आई थिंक दैट वाज द ओनली रीजन आई कुड थिंक ऑफ. थोड़ा वेट ही कर लेंदा भला एक सेकंड. वो तो है 2 थे ना, दो अवेलेबल थे ना, इसलिए. अच्छा जी, उवैस शाह, आपका सवाल है इंग्लैंड से, सॉरी इंग्लैंड से उवैस शाह, वो वाले आई डोंट घूम रहा वो था, मिले थे आज ग्राउंड में. हाँ तो इसीलिए मैं क्या कोई पता नहीं. आई डोंट थिंक सो. दिस इज सवाल देख के कह रहे हो? AWAIS. Oh, sorry. It's not OV, right? So this is Uwais Shah. Uwais Shah कह रहे हैं कि for a country that created the reverse swing and invented the दूसरा, what has happened to our bowling standards? Waqar and Wasim, please answer that. गो ऑन वसीम भाई, मैं 2-3 देते हैं जवाब. शेयर द लोड. भाईजान दे दो. नहीं, एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ एक गंदे अंडे का. Yeah. They are very horrible people as well in this world. Yes, there are. Yeah. तेरा नाम नहीं लेना था, जो मर्जी लिख ले तू. क्वेश्चन था कि फास्ट बॉलिंग हमारी रिवर्स स्विंग हमने किया, जो भी किया, अब क्यों हो गया फास्ट बॉलर्स को? वो ये कह रहे हैं कि सो द कंट्री दैट जिसने रिवर्स स्विंग बनाई, जिसने दूसरा इजाद किया, वो उसकी बॉलिंग को क्या हो गया? ये क्या हो गया बॉलिंग स्टैंडर्ड्स को हमारे? I don't know, man. There is no quick fix. I've been saying it for the last 5 years. It's not a quick fix. I think here the question, and in fact we should address it a little differently. Yeah. It's not about the fix. It's about, let's answer that, how have we come to this point? Yeah. That's not a difficult answer to उसका जवाब मुश्किल नहीं है. बताएं. आपके पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में कितने चेयरमैन बदले? ऐसे ही टीसीबी के जो भी चेयरमैन आता है वो तो एक अपनी टीम उसको लानी जरूरी है. सारा धर्म भरम करके कोच सैक, ये सैक, सीईओ सैक, नेशनल क्रिकेट एकेडमी का हेड सैक, 2 दिन बंदा वेट कर लेता है. कुछ उनसे पॉइंटर्स मांग लेता है कि तुम्हारे कोई प्लान चल रहे हैं आगे या कुछ हो रहा है, फर्स्ट क्लास सिस्टम ठीक जा रही है, देन उसको कैरी करना चाहता है वो कैरी करे, अगर नहीं तो इम्प्रूव करके कैरी करे. बट एवरीबडी कम्स. आप तो सुना ऑफिस नहीं घुस सकते अगर चेयरमैन चेंज हो जाए. अगर फॉर इंस्टेंस एक चेयरमैन चेंज हुआ है उसका नोटिफिकेशन आ गया, उसके बंदे पहले पहुंच जाएंगे, ऑफिस को बंद कर देंगे. जो चेयरमैन प्रेजेंट है वो जाके अपनी एनिक नहीं ले सकता जाके, वो घर पे चाहते हैं. चेयरमैन बनाता कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. रेड ऑक्सीजन आपका सवाल है आज रूम में. First of all, Salam Fakhri Alam and all the panelists. Can Pakistani leaders put politics aside and make changes in cricket from grassroots to national level that will give positive results in the future? We don't need to reinvent the wheel. PCB can learn from other cricket boards and their systems. This is for all of you who's asking. I mean, I don't know. You want to share your thoughts on that? Look, इसके लिए बहुत सारा हौसला और सब्र की ज़रूरत पड़ेगी. अगर आपने इस रूट पे जाना है कि जी सारा रीवैम्प करके उसको दोबारा से ग्रास रूट से ठीक करने चलेंगे, करना तो चाहिए. मैं समझता हूँ कि उस पर वर्किंग होनी चाहिए, लेकिन टोटली उस पर डिपेंडेंट नहीं करना कि ये सारा तोड़ के दोबारा बनाओ, क्योंकि तोड़ के बनाना मतलब वक्त, और वक्त आजकल मेरा नहीं ख्याल कि ना किसी के पास भी है, ना मीडिया के पास वक्त है, ना क्रिकेट बोर्ड के ना चेयरमैन के पास वक्त है, ना कोई किसी के पास, इवन प्लेयर्स के पास भी वक्त नहीं है. सो आई फील कि ये इसको फिक्स करना चाहिए, लेकिन इसको तरीके से नीचे से फिक्स करना चाहिए ताकि ऊपर वाला सफ़र ना हो, और मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी चाहिए. मैं समझता हूँ, और हम मॉडर्न डे क्रिकेट हम लोगों को नहीं समझ आ रही कि कैसे खेलनी. But if I may, just to give somebody from the outside a perspective, पाजी जो कह रहे थे कि चेयरमैन बदलता है,
अगर एक एडमिनिस्ट्रेशन चेयरमैन बनता है एंड एक आपका क्रिकेट का एक नॉलेज हेड हो, एनीबडी, बट वो ऐसे ना अपॉइंट किया जाए, but to call them and ask them ki what do you see and where do you see with the vision of Pakistan cricket And over a then- span of 7 years, and see the exact blueprint. Yeah. And maybe then you can look to appoint that person and stick to that blueprint with the legends' knowledge involved in it. This is the blueprint. This is where we want to take things. Is this the right way forward or not? If and when you get to that, Yeah. I would like to add something. Yes, please. It is always good to learn from somebody who's experienced it. Yeah. You feel it for yourself, but like he said, from outside. There is another team called West Indies, Yeah. which was also at that level Peak. at one Yeah, time, yeah. peak, led the world for years and years. Then there's another team, which was Sri Lanka. Yeah. So it hurts us when it happens to us. So actually there are three teams that I look at who need to do this, what you're thinking. Yeah. Because it's pretty similar. You know, but- where West Indies was and where it is today is somewhat, what I hear from all of you. Yeah, fair call. And they are all different reasons at different places. स्टेबिलिटी नहीं है ना No, बेसिकली so I'm saying, so जो भी है वजह, ये तीनों टीमों के साथ ये अब नजर आ रहा है, और ये शायद और भी टीमों के साथ किसी दिन और होगा, तो प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम शायद जो क्रिकेट चेंज हुई है, ये उसकी बिल्कुल इससे या फिर जो लोग चेंज हुए हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई है, या गेंदें चेंज हुई हैं, या फॉर्मेट चेंज हुए हैं, तो मतलब सिर्फ एक, जैसे वसीम भाई ने कहा, इट्स नॉट अ क्विक फिक्स, It is. देयर इज अ लॉट मोर टू दिस than meets the eye, and each one who comes in tries to do their best. Yeah. Arvind has a question for both Nikhil, you, and Ajay Jadeja for you. And Arvind is saying, do you think that Team India will play a final in Dubai? And if so, against a team like Australia, what are their chances? Arvind from India is asking you that. Look, India is going to qualify now. I mean, Yeah. they're there. So, but it goes back to that one game, that semi-final. Yeah. It should be against who? England, South Africa, Australia, and Afghanistan on that Yeah. side. Yeah, on that side. On that side. I mean, I guess they'll play them. Yeah. So that's not an easy game. No game is easy in World Cup, and it's a tough game. Especially the semis. I feel that they should, because they're a better side at the moment. You know, they are better equipped to play in these conditions. Because the ball, if something, spin is doing a lot more, they should be in a position where they will be playing finals. And I hope they are, because Yep. I am still But, very... sorry, Yes, but sorry. be also wary कि जिस तरीके से रिदम अभी चल रहा है वो वर्ल्ड का 50 ओवर वाला चल रहा था. You can't afford to have slip-ups when you get to the final. Yeah, that is That very one game is also important then. Yeah, and we are not as solid as we were in the World Cup. Yeah. You know, we don't have Bumrah. Yeah. And I think Bumrah is a big miss. Big you know, factor. not that we depend on him or anything like that. This team is beyond one person, but it's not the same. Mohammad Shami today gave me signs of, something's hurting somewhere. Yeah. And fast bowlers will tell you when there's a niggle, you're Niggle, not yeah. the same. Yeah. Yeah. So, us taraf bhi hai aur, It's a very, the way you just put that, that, oh yeah, you said Bumrah, a big miss, and you just said that it's not that the team revolves around that one person. It's always about that. it doesn't. We are blessed to have Yes. talent at this they're a stage. fantastic side, Yeah. but it's not that they're unbeatable. They're beatable. ऐसा नहीं. That is true. Shauki Hayat, this will be the last question today. S. Hayat is asking, and that's for you, Waqar and Wasim, for both of you. Is it still not the time to get rid of sluggish, submissive Rizwan and Babar, literally, and that entire mindset? This is from Shauki Hayat. Look, I don't want to get into this because अगर यहाँ You पे should. No, I don't तुसी want कर to. लो. फिर इसी में तुसी जवाब दो. हाँ मैंने तो कहा है शो के शुरू में कहा I है. just don't want to say फलाने नु काट दो, फलाने नु काट दो. I'm not all for that. But I want problems to be sorted and fixed and spoke about. Okay, understand where you're coming from, but how हमें solution भी तो देना चाहिए ना. That's what we are sitting here. अगर we don't have a solution, there's no point saying. I'm sure cricket board अभी इसके बाद एक दफा फिर
वही बातें चलेंगी जो हम Right. बैठे कर रहे हैं, वहाँ पे भी चल रही होंगी यही बातें। मैंने और तो इसका कहा है कोई ना शुरू कोई में नई टीम बनाओ, खत्म होगी बात व्हाइट बॉल की। इट्स अ बिग मैरी गो राउंड जिसपे हम घूमी जा रहे हैं 4 साल से घूमी जा रहे हैं। और 4 साल से घूमी जा रहे हैं, सो आई मीन आई डोंट नो, बट हियर आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आई नो दैट आई सेड दैट्स द लास्ट क्वेश्चन, बट आई हैव टू आस्क यू दीस क्वेश्चंस बिकॉज़ दीस आर मेंट फॉर यू डायरेक्टली. HZQ, द गुड सोल, जिन्होंने कल भी आपसे सवाल पूछा था, उन्होंने आज आपसे सवाल पूछा है. वसीम भाई, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप का मैच है उसके पासेस मिल जाएंगे? So HSQ, well done, good question again. Sure. But he is not going to win the ball today. Yeah, we can't like अच्छा, do it again. मैं सलाह और देता सर हूँ ना। और एक और. मैं सलाह देता हूँ, सॉरी, अगला वर्ल्ड कप इंडिया में होगा, जाम साहब देंगे. हाँ जाम जाम साहब देखिए जी, जाम साहब हमारे जामनगर में, हाँ वो जामनगर में, बट अब फ्यूचर के जाम साहब तो है ना सर. उनकी ब्लेसिंग है, इसलिए तो हम उनसे कह दीजिएगा ना यार कि हमें टिकट्स भेज दें एयर के और होटल करवा दें और पासेस दिलवा दें. खत्म होगी बात. जब उनसे आप रिक्वेस्ट करें तो ऐसी छोटी ना करें. तो फिर सर उनसे कहें ना कि वो टिकट भेज दें, होटल करवा दें, वीजा लगवा दें और हमें बुलवा लें, पासेस दिलवा दें और पाकिस्तान को जितवा दें. ये हो जाएगा. 2 चीजें नहीं हो सकती, बाकी सब डन है, क्योंकि वीजा वो नहीं दे सकते, सरकार देती है. बाकी हमारी तरफ से आप हमेशा वेलकम है. आप अकेले नहीं, ये जितना भी पैनल है पूरा पैनल जामनगर आपका इंतजार करेगा और बहुत प्यार आया है वहां से, मैं ये भी कह सकता हूँ. ओके. क्योंकि वीजा सरकार देती है, अब हमारी सरकार नहीं है. Sure. और दूसरा, पाकिस्तान जिताना फिलहाल इम्पॉसिबल. ऐसे ही जाते जाते खाम में जादेजा भाई जाते जाते दिल पे चोट नहीं लगा सर, के- मैं पहले चोट अगर दिल तो मेरा, दिल तो हमारा भी टूटा हुआ है. अब्दुल रहमान छप्पन दिल टूटा हुआ है, इसीलिए अब्दुल रहमान कह रहे हैं. आखिरी सवाल है वसीम, आई एम सॉरी बिकॉज़ योर ग्लासेस आर सो वंडरफुल दैट वी हैव टू आस्क यू दिस तो क्वेश्चन. चंगी गल भी ले. अब्दुल रहमान कह रहे हैं आज हम सैड हैं, हमें वसीम भाई से गुजारिश है एक दफा नाग बन के दिखा दें प्लीज, जाने से पहले. एक दफा शीश नाग वाला प्लीज कर दें. जो इंजीनियर से नाग बने. फोकस प्लीज, कट टू वसीम अकरम. 3, 2, 1 एंड एक्शन. ओए मैं नागा. And with that, we're going to take a break. 10:30 बजे वैसे ही नाग बने. ब्रेक या छुट्टी हो रही थी तुझी? ब्रेक है क्या? यार है बन रहे हैं. ब्रेक है भाई, ब्रेक है. तो आप लोग ब्रेक लेना पसंद नहीं करते, ब्रेक ही लिया करें. इस उम्र में ज्यादा ब्रेक लेनी चाहिए आप लोगों को वैसे भी. अपनी बात करें. It's the DP World Dressing Room. We'll be back right after this short break. Oh, welcome back to the DP World Dressing Room. I'm Fakhr Anam. You're watching 10 Sports. And we are just doing our ICC Champions Trophy coverage now. We've been signing the balls here. Here we go. There you go, Bakar. And we can just pass on the marker. So what has happened in the break is, what has transpired here is that हमने एक winner select कर लिया और उनके लिए जो हमारी ये ball है वो sign हो गई है. अजय भाई, if you could just put it back on the DP World truck one more time. वैसे एक चेक कर रहे हो कि नहीं? ट्रक के करीब मैं ही जा रहा हूँ रोज. आज भी तुम जीत गए दोनों सांते, जबरदस्ती करना है. आज हम नहीं जीते हैं, आज वैसे चारों जीतते. ਇਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਟਰੱਕ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਣਾ. Okay, Ji. So this is what we decided in the break. It is going to be Abdul Rahman. Congratulations. Abdul Rahman ने कहा था कि आज हम बहुत सैड हैं और वसीम भाई से जो है उन्होंने जबरदस्त जो है वो शीशनाग वाला जो उनका स्पेशलिटी डायलॉग है वो कहलवाया. So congratulations, Abdul Rahman. DP World, our team here will get in touch with you and DP World will dispatch that ball to you. However, there was another thing that was going on, and that is Gautam Bhatia had this tweet that he had shared, and there is this young little boy. India versus Pakistan. If you could just cut into it, ये वाला जो tweet है जिसमें this young little boy is basically, here we go, there you go. So Wasim, he especially basically wanted, he was holding your book. Yeah, I know. And he wanted a signed ball by you. Wasim uncle. यार बेटू आपको बॉल पहुंच जाएगा. साइन कर दिया हम सारों ने, विकी के पास पड़ा है. दिखा दे विकी. Yeah. So Gautam Bhatia, we will get Gautam Bhatia. आपने ये tweet किया है, तो we will get in touch with you. And for this little boy, Wasim made sure that all of us signed the ball, and this will be dispatched to you. Thank you very much for that. With that, let's take a look at the points table. This is how the group stands right now, and दिल कर रहे थोड़ा देखना. India right on top. It's 2
games, 2 wins. They've got the 4 points, and of course, they are ready to go forward. New Zealand right there with 1 game and 2 points, but a much bigger run rate right there. And then Bangladesh, well, they're still in the game. Pakistan, unfortunately, it doesn't look good for them. वो हमारे स्टैट में आया कि पाकिस्तान का भी चांस है। क्या बात कर रहे या ये लिख पर तुमने पढ़ा नहीं? हो? पढ़ना आता तो यहाँ बैठ कर Yeah, ये कौन कह रहा है इसका? Still qualify for the semi-finals. Pakistan are not out mathematically. Still have a chance for Pakistan to qualify. Bangladesh and India must beat New Zealand, and then Pakistan need to beat Bangladesh. And With a bit margin. ना करने वाली गल्ला होंगी ना? नहीं पाकिस्तान can beat Bangladesh. That's No, but Pakistan can beat Bangladesh. Yeah, I'm not saying that. But Bangladesh have to और beat क्या New Zealand. कल का Bangladesh मैच have to beat important. New Zealand. New Zealand, ना? कल का अगर मैच Bangladesh beats New Zealand and India beats New Zealand, यार मेरी भी सुन लो, कल का मैच इंपॉर्टेंट है। अच्छा। मतलब न्यूजीलैंड बांग्लादेश। मतलब कल तक उम्मीद जागी है। This is the game tomorrow. Bangladesh versus New Zealand. This is going to come to you from Rawalpindi. We're going to come here with the coverage for that match tomorrow at 12 noon Pakistan Standard Time, and whichever time zone you are in. There's one question that I keep seeing over and over again in the last 2-3 days. उसको मैं जल्दी से address कर दूं. A lot of people are saying कि जब हम YouTube के ऊपर देख रहे होते हैं आपका शो, तो ये जो बीच के हिस्से होते हैं जब आप बात कर रहे होते हैं किसी प्लेयर के बारे में, किसी रिव्यू के बारे में या किसी उसके लिए, तो हमें freeze frames नजर आ रहे होते हैं. Why can't we see that? So we've explained this earlier as well many times before. I'll do it one more time, and that is that there are digital rights which are separate than broadcast, right? So ये प्रोग्राम चूंकि ब्रॉडकास्ट के लिए 10 स्पोर्ट्स एक टेलीविजन चैनल है उसके लिए होता है, और उसी की फीड फिर हम जो है वो यूट्यूब पर डालते हैं. So since there are no rights available to us for the digital platforms, we have to freeze frame, unfortunately. We'd love to do it live, we'd love to give the whole thing to you, but unfortunately it can't be done. And with that, I think that's about it for us today. One more time, a big congratulations to Nikhil Chopra and Ajay Jadeja. Congrats, your team did fantastic. Thank you, sir. And, it was just a great performance all round. And thank you, Waqar and Wasim. I know, Wasim, and for both of you and Waqar, it's been a difficult day, but all Pakistani fans. There are for still question marks everyone. everywhere for all of us. But you know what? We must move on. And the only way to move on is to introspect, think about the things that are wrong and get going with that. And with that, it is time to call it a night. Gentlemen, good night. See you tomorrow morning. This is the DP World at Dressing Room, our continued coverage of the ICC Champions Trophy. I'm Fakhri Anam, and you're watching 10 Sports. 8-bit Gulkan.